Minding. Okay, Assalamu alaikum. So today we are discussing all linguistics, and today we are talking about the MCQs. They are going to be very helpful for all of you. So this is going to be a database which you can afterwards access on YouTube. So first we are talking about alphabetically in sociolinguistics. So accent से start करते हैं. So accent क्या है? That is a regional or social variation in pronunciation. So ये डायलेक्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है. इफ यू टॉक अबाउट डायलेक्ट तो उसमें हमारे पास ज्योग्राफिकल एरिया और उसमें वोकैबुलरी दैट प्लेज अ पार्ट. और जो एक्सेंट है दैट इज अ रीजनल एंड और सोशल वेरिएशन जो कि प्रोनाउंसिएशन के लेवल पे होती है. सो एक्सेंट हैज टू डू मोर विद द प्रोनाउंसिएशन ऑफ अ वर्ड. Okay, going further, then we have a process of accommodation. Accommodation क्या होता है कि when speakers modify their speech to words that of their addressee or addressees. कि जब speakers अपनी गुफ्तगू को, अपनी speech को addressee जिनसे वो बात कर रहे हैं उनके हिसाब से modify कर लेते हैं. So that is called accommodation. Like some people in पोटोहार रीजन वो नॉर्मली इस तरह बोलते हैं कि ये फोन मुझे बताना. सो वो दिखाना या पकड़ाना उसे बताना की सेंस में लेते हैं. सो आफ्टर 1 or 2 days तो मैंने भी उनके साथ जब बात करनी तो मैं उन्हें ये कहता था ये पेन मुझे बताना. सो दिस इज कॉल्ड अकोमोडेशन कि आप एड्रेसी के साथ अपनी स्पीच को थोड़ा सा उसके लेवल पे उसके हिसाब से ऑल्टर कर लेते हैं. फिर adjacency pairs. So ये pairs कौन से? So this is a sequence of utterance. Yes, accommodation जो है basically तब होती है जब हम अपने speakers के हिसाब से अपने addressees जिनसे हम बात कर रहे हैं उनके हिसाब से अपनी speech को alter कर लेते हैं, modify कर लेते हैं. यानी हम उसके अंदर vocabulary items इस तरह के ऐड कर लेते हैं जो कि नॉर्मली हमारे जो जिनसे हम बात कर रहे हैं वो लोग उसको यूज करते हैं. तो हम जब अपनी स्पीच को उनकी स्पीच के करीब ले आते हैं. सो दैट इज अकोमोडेशन. नेक्स्ट इज एडजेसेंसी पेयर्स. सो ये क्या होते हैं? दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ अटरेंस from different speakers. So this is made up of a first part and a second part that typically co-occur or occurs together. Like hello, hello, how are you? I'm fine, thanks. How do you do? How do you do? So ये जो pairs हैं they are called adjacency pairs जो कि एक sequence में होते हैं. This is more to do with talk when people are talking to each other. तो ये वाले pairs use किए जाते हैं. अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम. आपका क्या हाल है? मैं ठीक हूँ. आपका नाम क्या है? मेरा नाम ये है. So these are adjacency pairs. Then African American Vernacular English, which is also called BVE, Black Vernacular English. African American means वो Africans जो कि अमेरिका में आके शिफ्ट हो गए. तो चूंकि वो बिलोंग करते थे अपने नेटिव प्लेसेस से तो उनकी जो लैंग्वेज थी जो अफ्रीकन मोस्ट अफ्रीकन लैंग्वेजेस हैं उसके अंदर हम ऑक्सिलरीज या जिनको हम हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं वो उसमें शामिल नहीं होते, वो उसमें अवेलेबल नहीं होते. तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि वो अगर बोलेंगे आई लाइक इफ दे आर सेइंग आई एम गोइंग सो दे से आई गोइंग. Same is the case with the past form. I was going, they would say I going. So this is the missing helping verb जो कि उनको नहीं पता. उनकी जो लेटर कम्युनिटी है, उनकी जो जनरेशन जो कि उसी अमेरिकन माहौल में है उनकी इंग्लिश में ये चीज नहीं होती because they live in the same environment where the rest of the American people are living. So ये उस चीज को पिक कर लेते हैं. So ये जो verbs हैं be, is, am, are, these are missing, these are called copula. So इसको copula deletion भी कहा जाता है. Next is age grading. So age grading क्या होता है? So it refers to the features of people's speech which vary at different ages. For example, at the level of pitch, vocabulary, pronunciation, grammar. तो मुख्तलिफ एज ग्रुप के जो लोग हैं उनके vocabulary में, pronunciation में, grammar में, pitch में फर्क होता है. For example, if son says
let's YouTube it, Dad. So father will say, let's what? Like the father does not know what YouTube is, or YouTube as a verb इसको हम कैसे यूज करेंगे. या एक अंकल, पुराने अंकल को, बुजुर्ग को आप कह दें कि आओ इस चीज को गूगल करते हैं, सो ही विल नॉट नो दिस, क्योंकि ये आइटम, ये वोकैबुलरी आइटम उसके लिए नया है. सो दिस इज एज ग्रेडिंग. जब एक ही स्पीच कम्युनिटी में रहने वाले मुख्तलिफ एज ग्रुप्स का आपस में एक वोकैबुलरी में, प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर में हम इम्तिजाज देखते हैं. देन वी हैव एपरेंट टाइम स्टडीज. एपरेंट टाइम स्टडीज क्या है? सो दीज आर these studies which compare the speech of older speakers to that of younger speakers in order to investigate language change and process. तो जो older speakers हैं और the younger speakers at the same time, एक ही time में रहने वाले जो older speaker और younger speaker, उनकी speech को आपस में compare करना. इसका जो साथ linked है वो है real time studies. इसमें ये हो सकता है कि आप देखें कि लाइक एज ग्रेडिंग से मिलता जुलता है ये. अगर आप देखना चाहें कि लाइक मेरे घर में जो मेरा लाइक बेटा है और मेरे फादर, अब इनकी लैंग्वेज के यूजेज में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, वो जो डिफरेंसेस होंगे वो एपरेंट टाइम स्टडीज में होंगे. सो इसके साथ ही आता है रियल टाइम स्टडीज, जो आगे भी आएगा. रियल टाइम स्टडीज में हम दो ग्रुप्स को मैयर नहीं करते, बल्कि एक ही ग्रुप को दोबारा मैयर करते हैं. यानी मैं अगर अपने बेटे की बात करूं तो अब जो उसका एज, मेरे दोनों बेटे जो हैं, अब जिस तरह वो बोल रहे हैं, और मैं उन दोनों को मॉनिटर करूंगा आफ्टर 1 ईयर कि 1 साल के बाद उनकी स्पीच में क्या क्या डिफरेंसेस आए. दिस इज रियल टाइम स्टडीज, कि आपने सेम ग्रुप को लिया मैयर करने के लिए. एपरेंट टाइम स्टडीज में यू कैन टेक 2 डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स एट द सेम टाइम, और रियल टाइम स्टडीज में यू टेक द सेम पार्टिसिपेंट ओवर द टाइम. वो टाइम पीरियड कुछ भी हो सकता है, सो वो रियल टाइम स्टडीज कहलाता है. देन वी हैव आर्गट और एंटी लैंग्वेज. सो इट इज काइंड ऑफ jargon और स्लैंग ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप और क्लास. सो ये बेसिकली एंटी लैंग्वेज जो है, it is a cant is a jargon or a language of a group, often employed to exclude, mislead people outside the group. So each term differs slightly in meaning. तो ये बेसिकली जब आप लोग किसी एक शख्स या कुछ लोगों से अपनी गुफ्तगू को, अपनी स्पीच को हाइड करना चाह रहे हैं, सो यू यूज आर्गट और एंटी लैंग्वेज. जैसा फेक ही बोली होती है, तो लोग आपस में बैठे बैठे फेक ही बोली बोलना शुरू कर देंगे, तो शायद ज्यादातर कम्युनिटी को वो समझ नहीं आएगी. सो दिस इज अ काइंड ऑफ स्लैंग. ये एक प्रॉपर लैंग्वेज नहीं है, ये एक स्लैंग है, एक जार्गन है जो कि आप लोगों ने इन्वेंट किया कुछ प्रॉपर पर्टिकुलर यूजेस के लिए. सो ये बेसिकली इस सेंस में यूज होता है कि बाकी लोगों को आप एक्सक्लूड कर देते हैं उस ग्रुप से, एक मार्जिनल ग्रुप को इसका आइडिया होता है. Then we have acrolect. So acrolect is the most prestigious dialect of variety in a particular language. किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज में सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस डायलेक्ट जो होता है वो एक्रोलेक्ट कहलाता है. लाइक इसकी मैं एक सिंपल एग्जांपल में आपको मिसाल ऐसे दे सकता हूँ कि और इसके साथ क्या है, मीसोलेक्ट और बेसिलेक्ट. मीसोलेक्ट मींस वो वैरायटी और डायलेक्ट जो कि मिडिल लेवल का है. बेसिलेक्ट वो वैरायटी या डायलेक्ट जो कि लोअर लेवल का या बेसर लेवल का है. तो इसको याद रखना, इसलिए एडवांस, A for advanced, A for acrolect, M for medium, M for mesolect, B for basic, B for basilect. For example, there are so many accents of Punjabi, लेकिन जो पंजाब की पंजाबी है, that is the real accent. उसके अंदर भी इसकी डिविजन्स हैं, like लाहौर की पंजाबी, उसका वो किसी और लेवल की है, सरगोदा की किसी और लेवल की है, जो खालिस सरदारों की पंजाबी है, सिखों की, या वो और लेवल की है. उर्दू पे आ जाए तो उर्दू का जो डायलेक्ट लखनऊ में है वो एक्रोलेक्ट है, स्टैंडर्ड डायलेक्ट है. इंग्लैंड में जो ब्रिटिश क्वीन जो उसका डायलेक्ट है, जिससे ब्रिटिश इंग्लिश कहा जाता है, वो एक्रोलेक्ट है. सो इस तरह वो डायलेक्ट या वैरायटी जो सबसे सुप्रीम होती है, दैट इज कॉल्ड एक्रोलेक्ट. सेकंड वाली मिडिल लेवल वाली मीसोलेक्ट, एंड थर्ड वन इज बेसिलेक्ट. Bilingualism, you know, when our knowledge of 2 languages, if a person has knowledge of 2 languages or ability to use 2 languages,
तो इसको हम बाइलिंगुअलिज्म कहते हैं। Borrowing. So borrowing is a technique in which that we have also read in morphology कि लोन वर्ड्स लिए जाते हैं अपनी लैंग्वेज में इनकॉर्पोरेट करने के लिए। जैसा सोफा, ये एक लोन वर्ड है। इसी तरह जो है लाइक ग्लास, जिसको हम उर्दू में यूज करते हैं, यूपीएस, जनरेटर, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में यूज करते हैं। सो ये सारे बोरोइंग के एग्जांपल हैं जिनको अपने अपनी लैंग्वेज का हिस्सा बना लिया। Change from above. So change from above and change from below, ये दो terms हैं। So it is a linguistic change which takes place above the level of conscious awareness. यानी speakers have some awareness of the fact that these linguistic changes are occurring. यानी change from above means कि this is like awareness that is above the conscious level. कि स्पीकर्स को थोड़ा सा आइडिया है कि कुछ चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉक अबाउट इंग्लिश, सो इंग्लिश के अंदर यू नो कि नॉर्मली आई लाइक इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई डोंट यूज शैल, आई यूज विल, विद वी, विद आई। तो शैल का जो यूज है वो एक तरह से ऑब्सोलीट होता जा रहा है, हम सबको पता है। सच काइंड ऑफ चेंजेस दैट आर कमिंग इन लैंग्वेज, जिसके बारे में हमें कुछ आइडिया है कि यस देयर इज सम चेंज व्हिच इज कमिंग, दैट इज नोन एज द change from above. And in the same way, change from below. So this takes place below the conscious level or conscious awareness. So speakers are not aware that such linguistic change is taking place. कि उनको नहीं पता कि कुछ linguistic change हो रही है। For example, जैसे हमारे अगर आप community की example लें, so let's Google it, let's YouTube it, मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया। अब ये वाली टर्म्स उस बंदे को जो कि टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है, उसके लिए ये चेंजेस उसके उस कॉन्शियस लेवल से नीचे हैं। सो ही डज नॉट हैव एनी आइडिया कि देयर आर सर्टेन चेंजेस व्हिच आर कमिंग इन अ लैंग्वेज। ओके, क्लास. So class is a person's social standing or socio-economic position in society. So ये basically this is often judged according to the level of education and occupation और कुछ फैमिली बैकग्राउंड और इनकम के हिसाब से भी। मतलब अरिस्टोक्रेटिक क्लास है जिसके बारे में यू नो के जो क्लास सिस्टम के ऊपर लाइक आफ्टर लाइक द पर्सन हु कार्ल मार्क्स के उस मार्क्सिज्म जो उसने फिलोसफी दी, उसके बाद क्लास सिस्टम को बड़ा प्रोमिनेंट किया गया। सो इफ वी टॉक अबाउट सोशियो लिंग्विस्टिक्स, तो इसमें भी क्लास सिस्टम का बड़ा रोल है। Like we have particular languages associated with the class system. कि upper class, elite class कौन सी language बोलेगी, middle class क्या बोलेगी, lower class क्या बोलेगी। Then code or variety. So code or variety, so it is any set of linguistic form which patterns according to social factors, like used under specific social circumstances. This includes different accents, different linguistic styles, different dialects, and even different languages which contrast with each other for social reasons. So ये जो code और variety, they are almost synonym of a language. ये language के तकरीबन synonyms हैं. They're almost treated as language. So ये basically क्या है कि ये different accents हो सकते हैं, different linguistic styles हो सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज के डिफरेंट डायलेक्ट्स हो सकते हैं। तो जितने डिफरेंट डायलेक्ट्स हैं वो डिफरेंट वैरायटीज हैं, जितने डिफरेंट एक्सेंट्स हैं वो डिफरेंट वैरायटीज या डिफरेंट कोड्स हैं एक लैंग्वेज के। कोड मिक्सिंग, सो कोड मिक्सिंग एंड कोड स्विचिंग, ये दोनों कंफ्यूजिंग टर्म। कोड मिक्सिंग क्या है? इट इज अ रैपिड मिक्सिंग फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर विद इन अ कन्वर्सेशन। कि एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज के अंदर रैपिड मिक्सिंग करना, लाइक उसने लाइट ऑन नहीं की और अनफॉर्चुनेटली गिलास गिरा और टूट गया। सो इसमें लाइट ऑन, अनफॉर्चुनेटली गिलास, इसको हमने बिल्कुल प्योरली अपनी लैंग्वेज के अंदर मिक्स कर दिया है। सो वी आर मिक्सिंग द कोड्स, वी आर मिक्सिंग द कोड ऑफ इंग्लिश, जो कोड हमने अभी पढ़ा, वी आर मिक्सिंग द कोड ऑफ उर्दू। सो दोनों कोड्स को हम आपस में मिला रहे हैं। इसके बरक्स जो कोड स्विचिंग होती है, सो दैट इज यूज ऑफ मोर देन वन लैंग्वेज ड्यूरिंग अ कन्वर्सेशन। कि आपने ऑल टुगेदर कोड को स्विच कर देना। कोड को स्विच करने का मतलब है कि फॉर एग्जांपल आप
इलेक्ट्रिसिटी से स्विच किया, यूपीएस पे आ गए। एक है जिसमें आप दोनों चीजों को इकट्ठा चला रहे हैं, वो मिक्सिंग है। जिसमें आप एक चीज को स्विच करके दूसरी पे आ जाते हैं, सो दैट इज स्विचिंग, कि आपने एक स्विच ऑफ कर दिया इंग्लिश का एंड यू टर्न ऑन द स्विच ऑफ लाइक उर्दू, तो आपने इंग्लिश से उर्दू में कन्वर्ट कर लिया। इसकी एग्जांपल ये है कि जस्ट एज आई टोल्ड यू अबाउट कोड मिक्सिंग, सो कोड स्विचिंग उसका ऑपोजिट है। ये मैंने कोड स्विचिंग की, पहले मैंने एक फिक्रा इंग्लिश का बोला और साथ मैंने दूसरा फिक्रा उर्दू का बोल दिया, सो मैंने ऑल टुगेदर कोड को स्विच कर लिया, जिसके अंदर मैंने बिल्कुल डिफरेंट लैंग्वेज को यूज किया। Then we have coinage. In morphology, coinage is the process in which we invent a new word, so hence a new word comes into language. So ये language का एक हिस्सा बन जाता है, like compact disc, CD, website, ये पुराने जमाने के words हो चुके हैं अब तो। YouTube is coinage, Google is coinage. Communicative competence. So communicative competence क्या है? This is a competence of the native speaker. हम लोग लैंग्वेज को यूज करते हैं एंड वी गेट द नॉलेज ऑफ सम लैंग्वेज दैट वी आर लर्निंग और वी आर ट्राइंग टू लर्न। सो उसमें क्या होता है कि हम मुख्तलिफ लैंग्वेजेस तो बोल लेते हैं, लेकिन वी डोंट हैव द कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ दैट लैंग्वेज और दोज लैंग्वेजेस। सो फॉर एग्जांपल, किस तरह के एक शख्स जिससे आप पूछते हैं कि क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ, तो अगर उसे उर्दू नहीं आती तो वो शायद आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उसकी एबिलिटी का जिक्र करें, तो आपसे कहेगा जी आप मेरा नाम पूछ सकते हैं। सो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ उर्दू सेज कि कोई ये टर्म बोली गई तो आपने उसके जवाब में अपना नाम बताना है, ये नहीं कि आप आगे जवाब देंगे कि आप ये पूछ सकते हैं। सो सिमिलरली जब आप इंग्लिश लैंग्वेज बोल रहे हैं, सो इट हैज इट्स ओन कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, जिसमें फॉर एग्जांपल इफ समवन सेज यू go down the road or go down the corridor. So go down the corridor does not mean that you have to go like this way. I already explained this in one of my earlier sessions. So that means to go away from the center. So go up means go towards the center. So in this way, English language की भी अपनी communicative competence है. Like if someone says, how do you do? So हमारी communicative competence नहीं है तो हम कहेंगे yes, I'm fine, thank you. But communicative competence says that you have to treat the words or sentences like natives do. तो वो how do you do का meaning भी और reply भी how do you do ही होता है, if you watch that closely in some movies or videos. Convergence. So convergence क्या process है? So it is the ways in which speakers emphasize similarities between their speech and that of others. कि एक डिफरेंस रखना, एक यानी इजाफी या एक नुमाया डिफरेंस रखना अपनी स्पीच में और बाकी लोगों की स्पीच में। व्हेन पीपल लाइक द पर्सन दे आर टॉकिंग टू, जब वो उनको पसंद करते हैं जिनसे बात कर रहे हैं, और विश टू प्लीज देम, टू पुट देम एट ईज, सो देयर स्पीच इज मोर सिमिलर। सो ये स्पीच उनके बड़ी करीब हो जाती है, जिससे हमने अकोमोडेशन का प्रोसेस पढ़ा। सो ये स्पीच कन्वर्ज हो रही है। लेकिन अगर आप जानबूझ के अपनी स्पीच को बाकी लोगों से डिफरेंट रखोगे क्योंकि यू स्पीक डिफरेंटली, सो दैट इज लाइक डाइवर्जेंस। इसमें क्या है कि आप वो जो सिमिलैरिटीज हैं आप उनको हटा देते हो, कि लाइक अ ट्रैवल एजेंट इन वेल्स यूजिंग वेलिश व्हेन टॉकिंग टू अ वेलिश क्लाइंट एंड इंग्लिश टू इंग्लिश क्लाइंट। एक बंदा सराइकी बोलता है तो वो अगर लाहौरी से बात कर रहा है तो वो लाहौरी पंजाबी बोलेगा, सराइकी में बात कर रहा है तो सराइकी पंजाबी बोलेगा। सो दिस इज कन्वर्जेंस, कि आप उनके करीब नुमाया तौर पे वो जो आपकी सिमिलैरिटीज हैं आप उन्हें हटाते हुए अपनी लैंग्वेज को उनके करीब कर रहे हो। डाइवर्जेंस इसका ऑपोजिट है, कि आप उस माहौल में रहते हुए आप उसका हिस्सा नहीं बनना चाह रहे, आपसे जो आपको वो एक्सेंट आता भी है तो आप अपने एक्सेंट को यूज करोगे। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, कि फॉर एग्जांपल आप कई लोग लाइक पोलैंड, फ्रांस, स्पेन, ये लोग ज्यादा इंग्लिश बोलना पसंद नहीं करते, जर्मनी, तो इनको इंग्लिश आती भी होगी, दे वांट टू टॉक टू यू इन इंग्लिश। सो दिस इज काइंड ऑफ डाइवर्जेंस। कवर्ट प्रेस्टीज। सो कवर्ट प्रेस्टीज क्या है? कवर्ट प्रेस्टीज इज अ लेवल ऑफ रिस्पेक्ट that you give to some language or dialect or code or variety, जो कि आपके दिल में है, एक रिस्पेक्ट एक लैंग्वेज के लिए। covert means hidden. For example, we are Punjabi, but at like formal platforms, we do not use Punjabi.
ऑनलाइन सेशन मैं ले रहा हूँ, मैं इंग्लिश और उर्दू में स्विच कर रहा हूँ, मैं पंजाबी नहीं यूज कर रहा। देखें, कोई लैंग्वेज पेंडू नहीं होती, कोई लैंग्वेज जो है बहुत ज्यादा सुपीरियर नहीं होती। दिस इज द एटीट्यूड ऑफ पीपल जो कि हमें लैंग्वेज के हवाले से उसके बदजन करता है या उसके करीब लेके आता है। So, covert prestige क्या है? Covert prestige is a hidden prestige that you have for some language. Like, if I am not using Punjabi here in front of you, that does not mean कि मैं उस पंजाबी को पसंद नहीं करता या उसके अगेंस्ट हूँ। That means कि मैं उसको छुपा रहा हूँ, लेकिन yes, I do like that. Overt prestige उसका ऑपोजिट है, that is open prestige, कि आप ओपनली उस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। Some people do, कि जिनको जो लैंग्वेज पसंद है वो उसमें कंफर्टेबल है। Miss Sarwat, yes, they are almost similar. Just accommodation is a process in convergence. Accommodation का प्रोसेस कन्वर्जेंस के प्रोसेस के अंदर यूज होता है। Then we have Creole. So Creole से पहले we need to understand Pidgin, क्योंकि हम अल्फाबेटिकली चल रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, Pidgin जो है वो क्या है कि स्पीकर्स जो हैं, अब पिजन का एक तरीका बड़ा डिफरेंट है। वो ये है कि दैट कैन नॉट हैपन इन टुडेज डे। अब आजकल के दौर में कोई लैंग्वेज नहीं बन सकती, कोई बनी तो इंतहाई जबरदस्ती होगी कि एक जुबान को बनाया जाए, क्योंकि ये बनते थे मुख्तलिफ एक्सीडेंट्स, हालात, या किसी बहुत बड़ी वॉर्स या उन वॉर्स को एंटिसिपेट करने के रिजल्ट्स में। तो लोग जब मुख्तलिफ लैंग्वेजेस बोलने वाले एक जगह पे इकट्ठे होते हैं जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज और है और वो आपस में कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, तो बीच में कॉमन लैंग्वेज को यूज करेंगे एज अ लिंगुआ फ्रैंका। सो अगर कोई कॉमन लैंग्वेज उनमें एग्जिस्ट नहीं करती, फॉर एग्जांपल आज अगर आप एक अरब के साथ, एक स्पेनिश के साथ, एक फ्रेंच के साथ, एक इटालियन, एक जर्मन के साथ इकट्ठे होंगे, तो शायद आप इंग्लिश को एज अ लिंगुआ फ्रैंका यूज करेंगे क्योंकि आपको एक दूसरे की जुबान समझ नहीं आ रही। बट व्हाट इफ कि आप लोग ऐसी जगह पे गैदर हो जाएं जहां पे आप सारे हो और आपको वहां पे एक अरसा रहना है, शायद पूरी उम्र रहना है, लेकिन आपके पास एक कॉमन लैंग्वेज नहीं है, तो फिर क्या होता है? मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के वर्ड्स को अपनी एक लैंग्वेज को डेवलप करना शुरू कर देते हैं, उनको एक दूसरे से गुफ्तगू के लिए, समझाने के लिए। तो आपने मोबाइल ले लिया इंग्लिश में से, आपने कुर्सी ले ली उर्दू में, आपने मुख्तलिफ लैंग्वेजेस का जो है मजमुआ एक तैयार कर लिया। ये सिर्फ वर्ड्स आप तैयार करें वो। अच्छा, फिर दिस इज पिजन, जो कि एक आपने लिंगुआ फ्रैंका अपने लिए डिवाइस की। अब जो आप वहां पे रहेंगे, इंटर मैरिजेस होंगी, जो चिल्ड्रन हैं वो जब आएंगे तो उनका माइंड जो है बड़ा रिसेप्टिव है, बड़ा क्विक है। उस वक्त ये होगा कि वो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा ढूंढेगा कि हमें कोई मेच्योर लैंग्वेज मिले, ऐसी लैंग्वेज जो कि सबसे ज्यादा लाइक एक अपने स्टेज पे है, यानी जिस रूल्स, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स डेवलप है, तो वो उस लैंग्वेज को हासिल करना चाहेगा। अगर वो उसे मिल गई तो वो की तरफ कभी भी नहीं आएगा। लोगों ने ठान ली कि हमने एक नई जुबान ही बनानी है, तो उसके साथ वो वही वर्ड्स बोलेंगे जो कि उन्होंने बनाए हुए हैं। सो बच्चा जब देखेगा कि उसे सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा, तो उसका माइंड ऑटोमेटिकली एक सेंटेंस स्ट्रक्चर को डेवलप कर लेगा। सो दैट द कैपेसिटी ऑफ योर माइंड। सो वो एक सेंटेंस स्ट्रक्चर को देगा, और ये जो लैंग्वेज वो सेंटेंस स्ट्रक्चर को पुट करता रहेगा। सो दिस इज क्रियोल, और क्रियोल थर्ड स्टेज पे जाके एक लैंग्वेज का दर्जा ले लेती है। One is that one term next is that is diachronic. So diachronic means historical. So this is historical study of language, जो कि over the time के पूरे टाइम पीरियड में मॉनिटर करती है कि लैंग्वेज के अंदर क्या क्या चेंज आया, यानी हिस्टोरिकली लैंग्वेज में क्या क्या चेंज आया। इसका ऑपोजिट है सिंक्रोनिक, जो कि लैंग्वेज चेंज देखती है या लैंग्वेज का कंपैरिजन देखती है एट अ गिवन टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर। डायक्रोनिक में हिस्टोरिकल है, क्रोनिक में एट अ गिवन टाइम और एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। डायलेक्ट जिसे हमने देखा एक्सेंट के मुकाबले में, सो दिस इंक्लूड्स वोकैबुलरी इन इट, और इसमें ग्राफिकल फीचर्स भी शामिल होते हैं, जिसमें ग्रामर भी है और प्रोनाउंसिएशन के डिफरेंसेस भी हैं। एक्सेंट की जहां तक बात करें उसमें वोकैबुलरी और रीजनल फीचर्स नहीं होते, ये इनमें फर्क है। डायलेक्ट कॉन्टिन्यूम क्या है कि जहां तक डायलेक्ट एक अंडरस्टूड रहता है दूसरी कम्युनिटी के लिए, वो एक डायलेक्ट कॉन्टिन्यूम है। लाइक लाहौर है, लाहौर से अगर आप जाएंगे, अगर मोटरवे को लेते हैं, तो लाहौर से अगर आप पिंडी भटिया की तरफ जाएंगे तो डायलेक्ट के अंदर एक चेंज है, लेकिन अंडरस्टूड।
हम उसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वहां से आप सरगोदा की तरफ जाएंगे, सरगोदा से आप निकल जाएंगे चक्री की तरफ, रावलपिंडी की तरफ। डायलेक्ट्स के अंदर चेंज आ रही है, स्टिल हम उन इंटेलिजिबल हैं। वहां से आप अटक की तरफ चले जाएंगे, चेंज विजिबल हो जाएगी, और आगे जाके आपको लगेगा कि अब आप वो डायलेक्ट्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। सो वहां पे वो बिल्कुल जो तो जहां तक आप उस एक डायलेक्ट को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं एक दूसरे के डायलेक्ट्स को, दैट इज डायलेक्ट कॉन्टिनम। और ये याद रखिए जहां पे समझ आने बंद हो जाते हैं वहां पे एक नई लैंग्वेज बन जाती है, जिस तरह पश्तो है। सो पश्तो अगर अटक की बेल्ट लें तो वो एरिया है जहाँ पे बहुत ज्यादा पंजाबी पख्तून दोनों हैं। सो वहाँ की जो डायलेक्ट्स हैं वो शायद हमें प्रॉपरली समझना है। उससे आगे फार बियॉन्ड पश्तो शुरू हो जाती है। Discourse marker. So discourse marker is a word or phrase that plays a role in managing flaws or structure of discourse. For example, we use well, you know, you see. So these are discourse markers जो कि discourse को properly mark करते हैं। Divergence, जिससे मैंने आपको बताया कि they do not tend to come at a familiar level. So ये divergence है। Diglossia. So diglossia क्या है? Is a situation in which two dialects or languages are used by a single language community. Okay, di means two. So एक ऐसी situation जहाँ पे दो dialects या दो languages हैं, वो एक language उसमें बोली जा रही हैं, एक language को high position हासिल है, एक को distinct low position हासिल है। So which is very clear in most of the cases. So इस situation को diglossia कहते हैं। Okay. Next, let me open further slides for you. And I'm sharing them on the screen, so I hope you'll be able to see them in some moments. So here they are. So continuing from F in sociolinguistics. So face. So face is our public self-image that we tried both to protect and to promote positivity. कि हमारा public self-image है। पब्लिक सेल्फ इमेज इन अ वे के मेरा एक पब्लिक सेल्फ इमेज है एज अ टीचर। सो आपका एज अ स्टूडेंट अपने अपने इलाकों में एज अ टीचर, एज अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर, और मुख्तलिफ एरियाज में मुख्तलिफ हिसाब से मुख्तलिफ में आपका एक पब्लिक सेल्फ इमेज है जिस पे आप चाहते हैं कि कोई आंच ना आए। आंच इन अ सेंस कि कोई आपको हुक्म ना दे सबके सामने, कोई आपको किसी काम से रोके मत, या आपकी बेइज्जती ना हो। सो फेस वो पब्लिक सेल्फ इमेज है जिसका हम ख्याल रखते हैं, जिसको हम बचाते हैं। गॉसिप इज लाइक ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन को ग्रेप वाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो वाइन के जो ऑर्चर्ड्स होते हैं वो बड़े जो ग्रेप्स के ऑर्चर्ड्स होते हैं बड़े एक दूसरे के करीब होते हैं। तो लोग जो आपस में वहां पे उनको उतारे होते हैं तो वो क्लोज एक कॉम्बैट सिचुएशन में होते हैं, तो वो आपस में बहुत सारी गुफ्तगू करते हैं और काफी गुफ्तगू इनफॉर्मल होती है, और उस इनफॉर्मल गुफ्तगू में शायद सच ना भी हो। सो ये गॉसिप ग्रेप वाइन वही है कि जिसमें एक फेमिलियर लेवल पे, इनफॉर्मल लेवल पे एक ग्रुप्स में होती है। सो दैट इज कॉल्ड गॉसिप। हेज और हेजेस। सो हेज क्या है? दिस इज अ वर्ड ऑफ फ्रेज यूज्ड टू वीकन और soften the force of an utterance। कि आपने एक utterance बोलनी है, ये याद रखें, sentences which is in our mind, जब हम उसे बोल देते हैं that becomes an utterance। तो जो utterance है उसके हवाले से उसके इफेक्ट को सॉफ्ट करने के लिए हम hedges यूज करते हैं। I suspect that he is a bit unreliable। कि एक बंदा जिस पे आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप ये नहीं कहोगे कि यार लानत भेजो भी कोई बंदा, आप उसको थोड़ा सा सिचुएशन को वीकन करोगे, सॉफन करोगे कि मेरे उस पे ट्रस्ट करना, आप समझ वाले हैं, आप देख लें। या बिट अनरिलायबल। अनरिलायबल इज अनरिलायबल कर दिया। नॉर्मली हम कहते हैं कि जी स्ट्रेट फॉरवर्ड भाई निकल जाओ, हमारे वैकेंसी नहीं। सो इसको आप कैसे कह सकते हो कि yes, the vacancies are filled, so we could we entertain you in the next hiring। so ये क्या है कि आपने उस इफेक्ट को सॉफ्ट किया। so ये words like bit वो थोड़ा नर्वस था
इसलिए ऐसा कर गया, या वो इतना गैर जिम्मेदार नहीं है. सो दीज काइंड ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड hedges. Then honorifics. So honorifics are expressions which indicate the relative status or social role of the speaker and addressee. कि जो बंदा, दो लोग आपस में जो बात कर रहे हैं, उसमें जो सोशल रोल्स जो डिटरमिन होते हैं, इनको ऑनरिफिक्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल, एक आर्मी प्राइवेट यानी जो एक आर्म फौजी है, वो कॉर्पोरल यानी अपने ऑफिसर को यस सर कहेगा. तो ये काम हो जाना चाहिए, यस सर. अब ये जो है, ये ऑनरिफिक्स हैं. हम अपने टीचर से, अपने सीनियर से सर करके बात करते हैं. सो ये ऑनरिफिक्स हैं जो हम उनसे यूज कर रहे हैं. Then isogloss. So isogloss is a boundary which distinguishes an area on a map where certain linguistic feature is found from area in which it is absent. So एक बाउंड्री है, वो एरिया जिसमें एक लिंग्विस्टिक फीचर मौजूद है, और वो एरिया जहाँ पे ये लिंग्विस्टिक फीचर मौजूद नहीं है, उन्हें सेपरेट करती है. फॉर एग्जांपल, कहीं पे हम जो है हम लाहौरी हैं, तो हम अक्सर कहते हैं लाहौरी, या मेरी चूड़ी टूट गई. सो अब लाहौरी होना और लाहौरी होने में फर्क है. सो अगर आप इसको डिटरमिन करना शुरू करें आइजोग्लॉस पे, तो ये शायद आपको टर्म लाहौर में ही मिले, उसके अलावा नहीं मिले. तो आप कह सकते हो क्योंकि दिस फीचर इज प्रेजेंट इन लाहौर और इन लाहौर, but this is not present in somewhere else. Jargon. So jargon is particular and often technical language, especially vocabulary used by a group of specialists such as doctors and lawyers to talk about their specialty, a feature of occupational style. अब ये क्या jargon क्या है? Jargon और register, they're very much interlinked. जो एक कम्युनिटी यूज कर रही है वर्ड, एक प्रोफेशनल कम्युनिटी, वो उनके लिए जार्गन है. उसको जो हम ले रहे हैं, हम उसको एज अ रजिस्टर ले रहे हैं. हम कहेंगे डॉक्टर्स का रजिस्टर है, ये वकला का रजिस्टर है, बट व्हेन दे आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर दे आर यूजिंग द जार्गन. सो एक डॉक्टर जो है वो दिल का दर्द नहीं कहता, वो उसे कार्डिक अरेस्ट कहेगा. सो जो आपस में उनकी जो लैंग्वेज है, दैट इज जार्गन, जो कि हमारे लिए रजिस्टर है. लैंग्वेज एटीट्यूड्स, एज आई सेड कि हमारे लैंग्वेज के बारे में एटीट्यूड्स होते हैं. सम वे और अनदर, वी लाइक वन लैंग्वेज और वी डिसरिस्पेक्ट वन लैंग्वेज. सो दिस इज एटीट्यूड ऑफ पीपल. सो लैंग्वेजेस आर ऑल गुड, ये सिर्फ एटीट्यूड्स हैं जो उन्हें चेंज करते हैं. देन लैंग्वेज चेंज. लैंग्वेज चेंज क्या है? दैट इज अ चेंज इन अ लैंग्वेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. कि लैंग्वेज के अंदर जो चेंज आती है, दैट मे बी एट एनी लेवल, वो प्रोनाउंसिएशन में हो, फोनोलॉजी में हो, मॉर्फोलॉजी में हो, सिंटैक्स में हो, ग्रामर में हो, मीनिंग्स में हो. So that is a change in a language which comes over the time. Okay, so ये आपके कुछ questions हैं. I'll be talking about them afterwards. So discourse is just a talk. Discourse में written और ये आप एक मैसेज, एक क्वेश्चन है कि discourse और register में क्या फर्क है. Discourse is a talk written or spoken manner में. Register जो है, that is only like a minor piece of it, a minor bit of it, जो कि हम लिखे हुए मैनर में या पढ़े हुए मैनर में लेते हैं. So that is a register, simple register about any particular profession. So that may be within discourse, एक छोटा सा segment है वो उसका. A register is not situational. Register is professional. Okay, language depth. So what is language depth? That comes when the speaker of languages die. जिस तरह के ज़माने में बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे रहा करते थे, और उसमें अगर कोई तूफान या इस तरह का कोई सुनामी, कुछ अर्थक्वेक टाइप चीज़ें आ गई कि वो सारे स्पीकर्स ख़त्म हो गए और ओवर द टाइम खत्म हो गए. सो दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज डेप्थ, के लैंग्वेज खत्म हो जाती है. लैंग्वेज प्लानिंग. सो लैंग्वेज प्लानिंग इन अ वे इज अ काइंड ऑफ सिचुएशन और काइंड ऑफ सिस्टम जिसमें बैठ के प्लान किया जाता है कि लैंग्वेज जो है दैट इज सेट ऑफ वैरायटीज, जिसमें कौन सा सिस्टम हमें यूज करना है, कौन सा डायलेक्ट जो है वो सुपीरियर है. लैंग्वेज शिफ्ट, जब एक कम्युनिटी एक लैंग्वेज को छोड़ के दूसरी लैंग्वेज पे शिफ्ट कर जाती है. जैसे हम मुसलमानों ने पर्शियन को छोड़ के दे शिफ्टेड टू उर्दू.
So this is called language shift, कि आपने एक language को छोड़ दिया and you shift it to another language. So ये भी several generations के ऊपर base करता है process. Okay, lexical item. So lexical item क्या है? A unit in a dictionary जो कि एक या ज्यादा orthographic words यानी spellings पे हो based. So एक unit जो dictionary में है that is called lexical words. और लेक्सिकोलॉजी कहा जाता है डिक्शनरी का जो नॉलेज है, इल्म है, डिक्शनरी मेकिंग. लिंगुआ फ्रैंका इज अ कॉमन लैंग्वेज दैट इज सर्विंग एज अ मींस ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन मैनी स्पीकर्स, मैनी डिफरेंट लैंग्वेज स्पीकर्स. जिस तरह एक अरबी और एक इंग्लिश, एक अरबी और एक उर्दू बोलने वाला आपस में इंग्लिश बोलेंगे, दैट इज अ कॉमन लैंग्वेज बिटवीन देम. लिंग्विस्टिक इनसिक्योरिटी क्या है? लाइक उर्दू हिंदी तनाज़ा, जिसमें उर्दू के हवाले से हमें खदशात पेश आए कि हमारी लैंग्वेज को खतरा है, थ्रेट है. सो लैंग्वेज इज अ पार्ट ऑफ कल्चर. सो कल्चर खत्म हो तो कम्युनिटी खत्म हो जाती है. मार्कर्स क्या हैं? इट इज सोशियो लिंग्विस्टिक्स. मार्कर इज अ लिंग्विस्टिक फीचर जो कि सोशल क्लास और स्टाइल एंड आइडेंटिटी शो कराता है. या आप अपनी प्रोनाउंसिएशन के जरिए कहाँ पे आप शो कराते हो कि व्हाट काइंड ऑफ क्लास डू यू बिलोंग टू. जिसमें हम लाइक कुछ लोग हैं वो बोलते हुए कह देंगे कि आई वेंट टू मीट अ फ्रेंड. सो दैट शोज के यानी इसमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, उसकी उसका एक्सेंट, उसकी अपब्रिंगिंग, उसकी एजुकेशन, उसका बैकग्राउंड. सो ये मार्कर्स हैं. Monolingualism, the knowledge of only one language. So if you are able to speak only one language, then you are a monolinguist. या monolingualism, एक knowledge सिर्फ एक जुबान का. Multilingualism, so that is language of more than one language. यानी more languages का जो knowledge है, that is multilingualism. Normally दो से ज्यादा जुबानों का. Multiplex network. So multiplex network means कि जिसमें एक नेटवर्क क्या है? नेटवर्क इज आर सोशल रिलेशनिंग. मैं अपने घर में लैंग्वेज किसी और तरीके से यूज करूंगा, ऑफिस में किसी और तरीके से यूज करूंगा, मार्केट में किसी और तरीके से यूज करूंगा. इसी तरह जो मल्टीप्लेक्स नेटवर्क है, सो ये एक नेटवर्क है जिसमें एक नेटवर्क थोड़ा सा एक्सटेंडेड लेवल पे आ जाता है और डेंस नेटवर्क में वो और एक्सटेंड हो जाता है. फॉर एग्जांपल, इफ आई एम टॉकिंग टू माय कजिन who is also working at my job place, so वो एक multiplex network हो गया. dense network भी इसी तरह है कि when you are talking to people, for example husband wife, they are sharing the same office and they are having same business somewhere else. so वो जो उनका network है, that is dense network, कि आप मुख्तलिफ networks के अंदर मुख्तलिफ तरह की language को use करते हैं. नेगेटिव फेस नीड्स. सो नेगेटिव फेस क्या है? ये एक नेगेटिव फेस का मतलब नेगेटिव नहीं है. इट इज एन इंडिविजुअल डिजायर नॉट टू बी इम्पोज्ड अपॉन और इम्पीडेड इन एक्शन. कि हर एक इंडिविजुअल की एक डिजायर होती है कि हम जो भी काम करें हमें रोका ना जाए. फॉर एग्जाम्पल, ये नहीं कि मैं किसी का सर काट दूं और मुझे कोई ना रोके. यानी सिंपल से कि हम एक मॉल में जाते हैं आजकल, तो हमारे अंदर होता है कि काश हमें ये मास्क लगाने के लिए मत रोके. हालांकि वो हमारी बेहतरी के लिए, लेकिन अगर वो हमें कोई रोकता है कि मास्क लगा लें, तो ये वी फील अ थ्रेट टू आवर नेगेटिव फेस कि भाई किसी ने हमें क्यों कहा. नेगेटिव पोलाइटनेस, इन अ वे पोलाइट कम्स फ्रॉम पोलाइटनेस. सो दिस इज द यूज ऑफ लैंग्वेज व्हिच इंडिकेट्स अवेयरनेस ऑफ एन इंडिविजुअल्स नेगेटिव फेस नीड्स. कि ये दूसरे के एंड पे है. मसलन जो बंदा, अगर एक बंदा है वो कह रहा है कि आप मास्क लगा लें, शायद हमें बुरा लगे, एक है कि प्लीज आपकी बड़ी मेहरबानी आप मास्क लगा लें, तो उसने ख्याल किया उसके नेगेटिव फेस का. सो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव पोलाइटनेस. नॉन स्टैंडर्ड. सो नॉन स्टैंडर्ड, दैट इज लिंग्विस्टिक फॉर्म ऑफ वैरायटी दैट डज नॉट कंफॉर्म टू एनी स्टैंडर्ड. के जो कि एक स्टैंडर्ड, मतलब जैसा अफ्रीकन इंग्लिश यानी ब्लैक वर्नाकुलर इंग्लिश, दैट इज नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिश. तो जो नॉन स्टैंडर्ड डायलेक्ट है, यानी जो कि उसके स्टैंडर्ड्स पे पूरा नहीं उतरता उस लैंग्वेज के स्पोकन रिटन लेवल पे, दैट इज कॉल्ड नॉन स्टैंडर्ड. नॉर्म्स क्या हैं? दीज आर द एक्सेप्टेड वेज ऑफ डूइंग समथिंग विद इन अ कम्युनिटी. कि कम्युनिटी में जब हम रह रहे होते हैं तो कुछ नॉर्म्स हैं. हाउ टू इंटरेक्ट, हाउ टू क्लोज द डोर, हाउ टू पुल द चेयर. सो ये सोशियो लिंग्विस्टिक्स में हमारे नॉर्म्स हैं कि व्हेन यू ग्रीट ईच अदर यू शुड से salam or hello or hi. Observer's paradox. So this is very important term. So observer's paradox is a situation
So this comes, or this generally happens, and it happens when we find कि एक बंदा जो कि रिसर्च करने आया है किसी प्लेस में. For example, if I am there to have a research on some topic, for example, कि इस कॉलेज में टीचर्स जो हैं या स्टूडेंट्स किस हद तक इंग्लिश बोलते हैं. सो रिसर्च एथिक्स क्या कहते हैं कि मैं उन्हें बता दूं कि मैं आपको ऑब्जर्व करने आया हूं कि आप यहाँ पे इंग्लिश बोलते हैं कि नहीं बोलते. तो अगर मैं एथिक्स को फॉलो करते हुए उन्हें बता दूं कि मैं ये ऑब्जर्व करने आया हूं, तो डेफिनेटली वो इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देंगे. तो ये क्या है, ऑब्जर्वर्स पैराडॉक्स के एथिकली उसे बताना भी है कि वो अपनी रिसर्च जो कर रहा है वो किस बेस पे कर रहा है, और अगर वो नहीं बताता तो एथिकली गलत है, अगर वो बताता है तो वो उस पूरी तरह अच्छे रिजल्ट्स नहीं ले सकता. सो दिस इज बाय विलियम लैबोव, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सोशियोलिंग्विस्ट था. Official language, you know very well that is officially accepted, that is officially that is used for official correspondence. Then we have overt prestige. Overt prestige जो है covert prestige का opposite, कि you have favorable like knowledge and respect for the language you are speaking and you don't have any shame for that. Pidgin, जिस हमने क्रियोल में जिक्र किया, तो क्रियोल की फर्स्ट फॉर्म को हम पिजन कहते हैं. Positive face need, so an individual's need to maintain a positive self-image and sense of belonging and of being appreciated by others. So ये क्या है हमारी पॉजिटिव फेस. ये पॉजिटिव फेस नीड्स क्या है कि मैंने अगर आपको पानी ला के दिया, आई एम एक्सपेक्टिंग अ थैंक्स. वो अलग बात है कि मैं आपको गिफ्ट देता हूँ, आप मुझे कहते हैं कि थैंक यू, मैं कहता नहीं, शर्मिंदा मत करो, नो थैंक्स नो सॉरी, लेकिन दिल में मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने गलती की है तो आप सॉरी करें, या मैंने आपके साथ कोई हेल्प की तो आप थैंक्स कहें. सो दैट इज पॉजिटिव फेस नीड. Positive politeness be the same, the use of language to reinforce the hearer's positive and positive face, कि वो जो हेयर का जो पॉजिटिव फेस है उसको रीइंफोर्स करने के लिए जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं उसको एनहांस करने के लिए, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव फेस. रियल टाइम स्टडीज, एपरेंट टाइम स्टडीज का एक ऑपोजिट, और इसमें ये उससे डिफरेंट है बिल्कुल. Received pronunciations, originally neutral accent in UK associated with the most high educated sections of British English society, sometimes called BBC English since it is used by some BBC news readers. So BBC जो English है वो कौन सी है, जो BBC के newscasters बोलते हैं. So some way or another सबके all came from one side or one place or one social status, तो उनकी लैंग्वेज एक जैसी हो गई. सो दैट बिकेम द रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन कि दिस इज बीबीसी इंग्लिश. तो हम उसको एज लाइक एक क्राइटेरिया बना देते हैं, बेंचमार्क बना देते हैं. रजिस्टर, यू नो, इट मे रिफर टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेज इन डिफरेंट सिचुएशंस इंक्लूडिंग differences in lexical choices. So more often used in narrower sense to refer to special jargon associated with certain activities or group of people, जिस हमने बात की. एक यू राइट इन दिस के यहाँ पे सिचुएशंस भी शामिल हैं. सो जो ये हैं, इनमें बेसिकली सोशल सिचुएशन के हिसाब से रजिस्टर्स होते हैं जो कि लोग बोलते हैं, या स्पेशल एक कम्युनिटी का प्रोफेशनल एक लैंग्वेज जो उनके लिए जार्गन होता है, वो हमारे लिए लिंग्विस्टिक हमारे लिए वो रजिस्टर होता है. Sapir-Whorf hypothesis. So Sapir-Whorf hypothesis जो है ये है about language determination, कि language जो है वो thought को determine करती है. The principle is defined in two versions: the strong hypothesis that was held by some of early linguists before World War II, and the weak hypothesis mostly held by some of the modern linguists. So ये क्या कहता है? This is hypothesis of linguistic relativity. So जिसमें हम relativity को देखते हैं. It is also known as Sapir-Whorf hypothesis. Sapir and Whorf both are different people. इन दोनों ने ये hypothesis दिया. ये क्या claim करते हैं कि structure of जो language है, किसी language का structure ये affect करता है speakers की word view और cognition को. And thus people's perceptions are relative to their spoken language. कि जब our thought, our language determines thought. जो हमारी language है वो thoughts को determine करती है. तो हमारी लैंग्वेज में फॉर एग्जांपल अगर है कि संडे इज ऑफ, हम संडे को छुट्टी का दिन रखते हैं
और उसमें छुट्टी है हमारी संडे को, सो हमारी थॉट के अंदर संडे इज अ डे ऑफ हैप्पीनेस। सो लैंग्वेज थॉट को डिटरमिन करती है, इनका जो रिलेशन है दैट इज लैंग्वेज रिलेटिविटी। स्लैंग क्या है? स्लैंग इज अ टाइप ऑफ इनफॉर्मल वोकैबुलरी or vernacular vocabulary, and it is subject to rapid change। के जो हम एक यानी दिस इज नॉन स्टैंडर्ड, रीजनल या किसी एक खास इलाके पे बेस्ड, ये एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है कि आप स्लैंग्स यूज कर रहे हो, स्लैंग में यू नॉट यूजिंग फॉर्मल वर्ड्स, आप बड़े इनफॉर्मल वर्ड्स यूज कर रहे हो, लाइक दैट्स रियली नफ और मेंजन, सो दैट मींस दैट्स रियली बैड। सो इस तरह के जो वर्ड्स हैं दे नॉट स्टैंडर्डाइज्ड इन डिक्शनरी, लेकिन हम उनको सोशल इंटरेक्शंस में यूज कर लेते हैं। Social accent or sociolect. So this is a variation in pronunciation relating to the social background. जो social background है उस हवाले से भी हम जो variations लेके आते हैं उसको हम sociolect कहते हैं कि for example जो महाजर हैं, शेख शमसुद्दीन का शादी में हमने शरबत पिया, so this is sociolect जो कि उनके social background को refer करता है। Social distance, so that is degree of closeness or relationship between participant in an interaction, how well they know each other. If that certain participant talking to each other, so there is always a social distance। ये तो मैं social distance कोरोना में लिया, ये कोरोना के अंदर social distance को यूज किया। लैंग्वेज के अंदर social distance ये है कि जो डिटरमिन करता है कि आप जो हैं वो उस इंटरेक्शन में कितने क्लोज हैं या कितना आप एक दूसरे से दूर हैं। जिस तरह like the social distance between two brothers is minimal, कि उनमें उनकी जुबान में जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, लेकिन एक क्लाइंट और लॉयर और पेशेंट और डॉक्टर उनके दरमियान वो डिस्टेंस ज्यादा है। इसमें सारी चीजें, इसमें रिस्पेक्ट आ जाती है, इसमें फेमिलियरिटी आ जाती है, इसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल होना आ जाता है। टैग क्वेश्चंस, टैग क्वेश्चंस हैं कि जो काफी हद तक बड़े इरिटेटिंग होते हैं। मैंने बताया था ना, मैंने पूछा था ना, हुआ ना, है कि नहीं? So ये जो words हैं, these are called tag questions। Write your code, we have already gone through it। Vernacular कहते हैं जो local, इलाकाई, vernacular language जो इलाकाई language है, vernacular accent जो इलाकाई accent है। So this was all sociolinguistics। Now coming to certain more linguistic MCQs, एक detailed में हम इसको देखने जा रहे हैं। So we are talking about rest of the linguistic MCQs and explaining them as well। So I hope the screen is shared and you can view it। Okay, so a term introduced by linguist Saussure, which refers to the state of language as it exists at any time, so that is synchrony। Synchrony comes from synchronous, like at a point of time, at a given time। So ये term Saussure जो कि फर्डिनेंड डी Saussure जिसके जो essays थे बाद में उन्हें कंपाइल किया गया, इसको फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स भी कहा जाता है। What is the scientific study of language? So scientific study of language linguistics को कहा जाता है। Sentence construction जो है that comes within syntax, जो वर्ड्स के रिलेशनशिप हैं आपस में और उनकी एक दूसरे के साथ मिलकर जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है, दैट कम्स विद इन मॉर्फोलॉजी। स्टडी ऑफ ह्यूमन स्पीच साउंड इज फोनेटिक्स। सो ह्यूमन स्पीच साउंड की जो स्टडी है दैट इज फोनेटिक्स। स्टडी ऑफ मीनिंग इज सिमेंटिक्स। सो सिमेंटिक्स में हम अल्फाज के जो मानी हैं वो किस तरह बनते हैं, क्या क्या तरीके हैं, उसको डिस्कस करते हैं। इस बहुत सारी थ्योरीज हैं इसके हवाले से। Language and social interaction is sociolinguistics। Psycholinguistics is the study of interrelation between linguistic factors and psychological aspects। कि जो language और mind इनका जो एक combination है that is sociolinguistics, जिसमें psycholinguistics जिसमें बच्चों की पैदाइश, उसके बाद से जो बोलना शुरू करते हैं, babbling, cooing, वो जो उनकी मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, और 1 word stage, 2 word stage, और माइंड और लैंग्वेज का या इंसान के जुबान का जो एक रिलेशन है, क्या इफेक्ट्स आते हैं अगर ब्रेन के अंदर इश्यूज हों। सो ये सब साइकोलिंग्विस्टिक्स में। सो लैंग्वेज
may be started by the imitation of sounds which early men and women heard around them. So this describes Boer theory. ये बड़ी इंपॉर्टेंट theory है कि यानी लैंग्वेज कैसे बनी, इमिटेशन से उन साउंड्स की, जो कि साउंड्स हम सुनते हैं जिसको हम onomatopoeic साउंड्स भी कहते हैं. सो उनको फॉलो करके जो वर्ड्स बनाए गए, इसको Boer theory कहा गया. So biological basis of formation and development of human language is called glossogenetics. So glossogenetics deal with the biological basis or formation of human language. Human beings language को predict कर सकते हैं past के बारे में बात करने के लिए, future को discuss करने के लिए और present को discuss करने के लिए. ये basically क्या है? This is displacement कि human beings can use the language. ये खसूसियत इंसानों में है, जानवरों में नहीं है. जानवर अपनी लैंग्वेज को यानी जितना भी वो लैंग्वेज को यूज करते हैं, वो कभी भी इस हवाले से कोई नहीं दे सकते जेस्चर कि वो अपने पास्ट को रिफर कर रहे हैं या फ्यूचर को. So there is no connection between a linguistic form and its meaning. So that is arbitrariness. Yes, language का जो form है, जो एक word लिखा है DOG और the shape of the very animal, इनके दरमियान कोई as such relation नहीं है, इनके दरमियान कोई relation exist नहीं करता. So this is purely Emmy. So arbitrariness means Emmy. ये Emmy एक relation बन गया है. So हम यूज करते हैं नए वर्ड्स, नए सेंटेंसेस जो कि जानवर नहीं कर सकते, उनकी लैंग्वेज लिमिटेड है. तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी, कि हम अपनी लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से, मुख्तलिफ प्रोड्यूस कर सकते हैं. 26 लेटर्स को यूज करके बेशुमार novels, thesis लिख सकते हैं. So that is productivity, which is not there with animals. A little change in the sound can change the meaning. So ये जो property है, that is discreteness. So sounds जो हैं वो discrete sounds हैं, like tin, pin, bin, t, p, b. इन sounds को अगर मैं थोड़ा सा differentiate करूं, मैंने सिर्फ एक phoneme change किया, t, p, b, तो all together जो words हैं वो change हो गए. So ये एक छोटी सी साउंड हमारी लैंग्वेज को चेंज कर सकती है. एनिमल्स में ऐसा नहीं होता. सो जनरल स्टडी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीच साउंड, इसको फोनेटिक्स कहा जाता है. द स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ स्पीच ऑर्गन्स और आर्टिकुलेशन और द स्टडी ऑफ हाउ स्पीच साउंड्स आर मेड. सो ये आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स है. फोनेटिक्स की 3 ब्रांचेस हैं. सो उसमें से आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स है जिसमें हम डील करते हैं कि साउंड्स जो हैं बेसिकली उनको कैसे आर्टिकुलेट किया जाता है, कैसे वो हमारे मुंह से निकलती हैं. इसमें मैनर्स एंड प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स, वोवल्स दोनों आ जाते हैं. फिर वो स्पीच साउंड्स, उनकी परसेप्शन कैसे होती है, उन्हें सेंड कैसे किया जाता है, दैट डील्स विद सुना कैसे जाता है. तो वो ऑडिटरी फोनेटिक्स डील्स विद दिस के आवाज जो हमारे कानों में पड़ती है, आउटर एयर उसे मिडल एयर में भेजता है, मिडल एयर उसे ट्रांसमिट करता है इनर एयर में, जहां से वो हमारे ब्रेन में ट्रांसमिट होता है. सो दैट इज ऑडिटरी फोनेटिक्स. और ये जो परसीव करते हैं साउंड, जो कि साउंड ट्रांसमिट की जाती हैं, ये हवा के जरिए होती हैं. सो दैट इज इन अकूस्टिक फोनेटिक्स. ओके, अब जब वर्ब गूगल को हम जब जो नाउन है गूगल, उसको जब हम कन्वर्ट कर देते हैं वर्ब गूगल में, सो दैट मेक्स अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, कि आपने कन्वर्ट कर दिया पार्ट्स ऑफ स्पीच को, क्लास को, कि नाउन को आपने वर्ब में कन्वर्ट किया. Acoustic phonetics deals with physical properties of human speech sounds की physical properties. The study of sign is termed as semiotics. So semiotics जो है वो sign की study है, जिसमें sign, signified, signifier, the concepts given by Saussure. The bound morpheme ER acts as inflectional morpheme in quieter. So इसमें we get to know कि हमारे पास बहुत सारे morphemes हैं. So इसमें basically this is wrong here. ये यहाँ पे derivation है. So this is derivational morpheme. Inflectional morpheme वो होता है जहाँ पे हम change लेके आते हैं, जिसमें हम एक चीज के अंदर
फॉर एग्जांपल ये दोनों बाउंड मॉर्फीम्स की टाइप्स हैं, इन्फ्लेक्शनल और डेरिवेशनल। इन्फ्लेक्शनल यूज करने से उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच या क्लास पे फर्क नहीं पड़ता, यानी वॉक के आगे आपने वॉक्स लगा दिया, वॉकिंग लगा दिया, बेसिक स्टेम वॉक ही रही, या वॉकड लगा दिया, या हैव वॉकड लगा दिया। लेकिन क्वाइट से क्वाइटर लगा दिया आपने इन अ वे, अगर आप इसको ले रहे हैं एज अ एडजेक्टिव, तो वो या आप ले रहे हैं लाइक ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुली, सो उसमें क्या होगा, आप उसको ये ज़हन में रखिए कि मैं इसको एज एन एडजेक्टिव डील कर रहा हूँ, क्वाइट या नाउन डील कर रहा हूँ, क्वाइट कराने वाला अगर हम उसको क्वाइटर कह रहे हैं तो। सो राइट और राइटर ये भी इसी तरह, आपने ई आर लगा दिया तो आपने एक नाउन को दूसरे नाउन में कन्वर्ट कर दिया, मीनिंग्स चेंज हो गए, या वर्ब को नाउन में कन्वर्ट कर दिया, राइट इज अ वर्ब, राइटर इज अ नाउन। क्वाइट जो है इसको भी इसी तरह आप चेंज करें। तो जब आप चेंज करें और आपको डिफरेंट वर्ड्स मिलें, सो दैट इज डेरिवेशनल। लेकिन जब आप उसमें प्लूरल फॉर्म ऐड कर दें, यानी आप कह दें कि लाइक पिलो एंड पिलोज, और इफ आप इसमें वॉक के अंदर आईएनजी ऐड कर दें तो बेसिक स्टेम पे फर्क नहीं पड़ा, सो दैट इज इन्फ्लेक्शनल। So, if a syntactic rule is applied more than once in generating a sentence, then it is known as recursion. कि जब आप एक syntactic rule को अप्लाई करते हैं एक दफा, एक से ज्यादा दफा एक सेंटेंस को डेवलप करने के लिए, सो इसे रिकर्जन का प्रोसेस कहा जाता है कि आप रिकर्ज कर रहे हैं, रिक्रूज कर रहे हैं इस चीज को। So meaning of one form is included in another, so relationship between them is hyponymy. कि एक चीज का रिलेशन जब दूसरी चीज में शामिल है, लाइक जैसे लिविंग बींग्स के नीचे एनिमल्स एंड प्लांट्स, एनिमल्स के नीचे आप ह्यूमन बीइंग भी ले लें, सोशल एनिमल, और दूसरी तरफ प्लांट्स में ट्रीज भी ले लें और प्लांट्स ले लें। सो ये बेसिकली एक सुपर ऑर्डिनेट कैटेगरी को डील करें कि सारे के सारे लिविंग बींग हैं, या लिविंग बींग में आप एनिमल्स को अलग करके मैन और इंसेक्ट्स ले लें, वो भी लिविंग बींग है। सो ये सारे के सारे हाइपोनिमी के रिलेशन में हैं कि एक फॉर्म का मीनिंग दूसरे में कहीं ना कहीं मौजूद है। फिर द नॉलेज ऑफ द फिजिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्पीकर इज नेसेसरी टू मेक सेंस ऑफ डिएक्टिक एक्सप्रेशंस, जो कि फिजिकल होते हैं, टेम्पोरल होते हैं, जो कि आप बताते हो कि मैं वहां पे खड़ा हूं, सो वहां पे तब मुझे समझ आएगी जब मैं वहां की सेंस को, कॉन्टेक्स्ट को जानता हूं। सो इनको डिएक्टिक एक्सप्रेशंस कहा जाता है, जो कि हमेशा कॉन्टेक्स्ट में क्लियर होते हैं। तो जनरल स्टडी जिसमें क्रिएटिविटी है ह्यूमन बींग्स की, जो कि एनिमल्स में नहीं है, दैट इज प्रोडक्टिविटी। Performance is a term introduced by Chomsky to describe the actual use of language in concrete situations. जिस तरह लॉन्ग एंड पैरोल का कॉन्सेप्ट दिया सोसियर ने, इसी तरह चॉम्स्की ने competence and performance. So competence is your ability to use the language, and performance is the actual use. So same is case with long and parallel. So the system of communication within a community is known as long. A pair of terms introduced by Chomsky in 1965 to describe native speakers' intuitions about the grammatical correctness or otherwise of sentences. So that is acceptable or unacceptable. कि कुछ acceptable हैं, कुछ unacceptable हैं. The study of language and mind, which has greatly advanced our understanding of the way in which acquire a language, is psycholinguistics. So this is the relation of first language acquisition or second language acquisition. So that comes within the domain of psycholinguistics. So ये किसने कहा? This is said by Chomsky. The language is unique evolutionary development of human species and distinguished from modes of communication used by any other animal species. So which of the following is a feature of speaker rather than their speech? So that is coherence. जो cohesion है, that is within the text. So जो उससे speaker जो उस चीज को जिससे accept कर रहा है और ले रहा है, that is coherence. So there are 24 consonants in English. IPA 44 sounds हैं जिसमें 24 consonants हैं और 20 vowel sounds हैं. उन 20 में से 12 monophthongs हैं और 8 diphthongs हैं. The term interlanguage refers to, so that is a system of rules generated by the speakers of L1 who are learning L2. So this is यानी first language के जो speakers हैं
उनके जो रूल्स हैं और उसके तहत जो सेकंड लैंग्वेज हासिल कर रहे हैं, उस टर्म को कहा जाता है इंटर लैंग्वेज. So which of the following constitute an adjacency pair in conversational analysis? So two linked phase of phrases or conversation. Assalamu alaikum, wa alaikum salam. So this is adjacency pair. So which of the following statements is true about discourse? ये सारी ठीक है कि discourse could be found in an interview data. मैंने बताया था written में भी होता है, spoken में भी होता है. Discourse is how language operates in real life communicative events. So discourse is the language at level which is broader than a sentence. So this is all of these. ये भी we have already done the coexistence of two different varieties in a language, जिसमें एक higher और एक lower status पे है, that is diglossia. फिर एक hybrid language that develops in its own grammar and vocabulary and acquires the speaker is known as Creole. ये एक hybrid language है जो कि मुख्तलिफ languages का मजमुआ है. The cult of seeing postmodernism as a converse of the ideals of the Enlightenment is opposed by Jürgen Habermas. John Clare, ये उसने क्या, which of the following lived during the Romantic Age in the history of English literature? So that was John Clare. तो एक दो इसके अंदर literature के भी आ गए, sorry for that. Okay, when the vocal cords are spread apart and the air from the lungs passes between them unimpeded without stoppage, the sound is called both voiced or voiceless. So unvoiced भी कहते हैं voiceless को. So this is both. हाँ, vibration अगर है तो उस सूरत में वो voiced होते हैं, लेकिन ये इन दोनों के हवाले से when there is some vibration in the cord while producing sound, so those sounds are voiced. सिंपल सा उसके यहाँ पे एडम्स एप्पल पे जो कि गिल्टी होती है, हाथ रख के साउंड बोलें फ ब, सो यू विल फील कि वाइब्रेशन किस में आ रही है. सो दोज वाइब्रेटिंग साउंड्स आर वॉइस्ड. So number of vowels and consonants 20 and 24 total make a 44 set of sounds. So sound in English language are classified as bilabial, dental, alveolar, platealveolar, velar, glottal. So this is according to their place of articulation कि हम मुंह के किस हिस्से से उन्हें articulate कर रहे हैं. So this refers to place. म, ब, व. So these sounds जिसमें upper and lower lip they get together, they combine together. So these are bilabial sounds. Bi means two, labial lips. F, v. So f, v are labiodental sounds क्योंकि upper teeth touch lower lip, so this makes it labiodental. इस चार्ट का सबसे अच्छा तरीका ये कि इफ यू गो थ्रू दिस चार्ट, आप इसका एक क्रोनोलॉजिकल और एक सीक्वेंस में देख लें कि फर्स्ट हमारे लिप्स आते हैं, फिर उसके बाद लिप्स एंड टीथ आते हैं, देन टीथ आते हैं, टीथ के पीछे उसकी रिज आती है, उसके बाद हार्ड एरिया आता है, फिर सॉफ्ट एरिया आता है. सो आपको इस तरह ये चीजें याद रहेंगी. इफ यू टॉक अबाउट ट ड, सो ट ड को टच कर बोलते हुए हमारी जुबान दांत के पीछे एक जो हार्ड रिज है उसे टच हो रही है. सो दीज आर कॉल्ड एल्वियोलर साउंड्स. ख ग इनको बोलते हुए हमारी जुबान पीछे की तरफ टिल्ट करती है सॉफ्ट एरिया की तरफ. सो दीज आर वेलर साउंड्स. अब इनके मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन. मैनर मींस के आप इनको बोलते किस तरह, कहां से बोलते हैं, वॉज प्लेस, किस तरह बोलते हैं, दिस इज मैनर. सो दीज आर प्लॉजिव्स. प्लॉजिव्स और स्टॉप्स भी कहा जाता है. क्यों? जब मैंने ये साउंड बोली तो अचानक पहले माउथ बिल्कुल क्लोज था और अचानक एक धमाके की साउंड के साथ वो साउंड, पहली साउंड निकलती है, इनिशियल साउंड. सो दैट मेक्स इट प्लॉसिव. फ्रिकेटिव्स क्या हैं? कॉन्सोनेंट्स हैविंग एयर पुश थ्रू द नैरो ओपनिंग. नैरो ओपनिंग होती है और हमें थोड़ा सा उसमें फ्रिक्शन फील होती है. सो व्हेन दिस इज द केस तो हम उन्हें फ्रिकेटिव्स कहते हैं. लिक्विड कॉन्सोनेंट्स, so these are called liquid consonants. So in American English, if t occurs between vowels, is pronounced as d, like muddle. So this is a muddle sword. So this process is flapping. इसको हम flapping कहते हैं.
The only lateral sound is L जो है, that is the only lateral sound. So this is very simple to know. L for lateral and L is. Yes, Miss Kamal, grammatical change which does not change the base of some word is inflection. लेकिन जिसमें हम change कर देते हैं like word का meaning, so that is derivational. Okay, someone wants to like so this is flapping. आप देखें जिस word है in a way metal. So metal के आगे यानी it occurs between walls. So इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, यानी E और A, अगर हम सिर्फ अल्फाबेट्स में देखें तो E और A में जो D साउंड है that changes to T sound. Some way it is process of assimilation तो और linking. So उसमें हम वो D sound, वो जो metal का T sound है that changes to D sound, metal. So he was this a Batman. So या इसको हम प्रोसेस कहते हैं फ्लैपिंग का, कि आप इसको फ्लैप कर गए साउंड को, कि आपने साउंड को एक तरह से शिफ्ट कर दिया. Okay, the dash sounds are mostly articulated with obstruction in vocal cords. So consonants. So consonants are sound जो कि obstruction से पैदा होते हैं vocal cords में. Vowels में obstruction नहीं होती, free air flow होता है. The sounds which are pronounced without any obstruction, they are vowel sounds. So the number of monophthongs or diphthongs, so they respectively they are 12 and 8. 12 monophthongs हैं और 8 diphthongs हैं हमारे पास. Study of speech pattern phonology. So phonology के किसी particular language की एक scientific study को phonology कहते हैं. General study of any language is called phonetics. Smallest unit क्या है speech sound का? phoneme. के the basic हमारे पास 44 sounds हैं, तो हमारे पास it means 44 phonemes हैं. The version of one phone are called allophone. एक फोन का जो version है variant है, जिससे t, ch, k, k, p, p, potato, potato, king, king, cat, cat. तो वो जो cat है वो cat का allophone है. So a sound pronounced with one puff of air is called a sound with one vowel sound. So that is a syllable. So एक syllable वो है जिसके अंदर एक puff है, एक जिसके अंदर एक break आती है, जिसमें एक vowel का होना जरूरी है. So syllable के अंदर दो चीजें हैं basically, जिसमें हमारे पास onset और rhyme है. Rhyme को further हम divide करते हैं nucleus में और coda में. So onset में normally हमारे पास consonants होते हैं. जो rhyme का part है उसमें हमारे पास nucleus और coda होता है. Nucleus हम हमेशा vowel को कहते हैं, क्योंकि vowel is the central part of a syllable. हर syllable में एक vowel का या एक से ज्यादा vowel का होना जरूरी है. Coda में again we can have consonant. So consonant after the nucleus उसको हम coda कहते हैं और पहले वाले को हम onset कहते हैं. The syllables having onset and nucleus but no coda are called open syllable. कि जिसके अंदर हमारे पास onset हो, nucleus हो, लेकिन ending consonant ना हो, उसको हम open syllable कहते हैं. और जिसमें हमारे पास onset ना हो लेकिन nucleus और coda हो, उसको हम closed syllable कहते हैं. इन कई words vowel से start हो रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि उसके अंदर consonant पहले आना था. So there are one or more consonants before or after nucleus, which describes consonant cluster. This is a word at transcribe. So TR दो vowels इकट्ठे आ रहे हैं. Play PL दो consonants इकट्ठे आ रहे हैं. PLAY, so उसमें दो consonants play PL, वैसे तो PLEI इसकी transcription होती है. So शुरू में हमारे पास दो consonants आ रहे हैं. So this all together is called consonant cluster. और ये इंग्लिश लैंग्वेज की खसूसियत है कि इसका एक पर्टिकुलर कॉन्सोनेंट क्लस्टर है, उसके अलावा इसमें स्पेलिंग्स नहीं आ सकते. अच्छा, जब दो फनीम्स एक सीक्वेंस में होते हैं तो उस चीज को हम और एक फनीम जो है वो दूसरे फनीम को कॉपी कर लेता है या उसकी जगह ले लेता है, या कॉपी हो जाता है, उसको हम असिमिलेशन कहते हैं.
सो एसिमिलेशन प्रोग्रेसिव भी होती है, रिग्रेसिव भी होती है। जब पहला जो है लाइक पार्ट वो दूसरे पे हावी होता है, सो दैट इज प्रोग्रेसिव, और दूसरा जब पहले पे हावी होता है दैट इज रिग्रेसिव। ये क्या है इसकी एग्जांपल, जिस तरह ब्लड बैंक। सो ब्लड और बैंक, इसको हमने ब्लड बैंक कर दिया। सो यानी जो सेकंड है वो हावी हो गया, सो दैट मींस दिस इज रिकर्सिव। हम ब्लड बैंक नहीं कहते, हम ब्लड बैंक कहते हैं। सो इसी तरह गुड बॉय, सो ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड गर्ल। सो डी साउंड को हम निकाल देते हैं। बास्केट मेकर, बास्किप, KIP, मेकर। We don't say basket maker. So this is basket maker. So this is also assimilation. Elision क्या है? When we omit or delete something, some word, some sound, like handsome, handkerchief. So ये जो है ये या him, हम n नहीं बोलते। So this is elision कि हमने एक sound को omit कर दिया। Coinage, you know, कि जब हम एक नई चीज को, नई प्रोडक्ट लेके आते हैं, नया वर्ड लेके आते हैं, that is coinage. Blending, जब two words are mixed together and they make a new word. जब दो वर्ड्स आपस में, पहले हमने बात की थी दो साउंड्स मिक्स होती हैं, वर्ड चेंज नहीं होता, वर्ड वही रहता है। यहाँ पे दो डिफरेंट वर्ड्स आर मिक्स टुगेदर और एक नया वर्ड बनता है, जिसका स्मॉग, फॉग और स्मोक से स्मॉग बन गया। ब्रैड पिट एंजेलिना मिले, ब्रेंजेलिना बन गया। मोटेल यानी होटल और मोटर, इनको मिला के बना portmanteau or blending. So portmanteau is the same thing as blending. ये उसका दूसरा नाम है, so don't get confused if portmanteau comes in front of you. Clipping क्या है? Clipping में हम एक आधा syllable काट के उसे short कर देते हैं, जैसे प्रोफेसर से prof, laboratory से lab, gasoline से gas, doctor से doc, advertisement से ad. Hypochorism ये क्या है कि if a long word is reduced to single word and then y or ia is added to this, जिस तरह handkerchief को normally hanky कह दिया जाता है informally, और breakfast को brecky कह दिया जाता है, ये भी informal होता है, तो इस चीज को hypochorism कहा जाता है। Conversion, we have done this. जब हमारे अल्फाबेट यानी एक्रोनिम्स और एब्रीवेशंस में ये डिफरेंस है कि जो एक्रोनिम्स हैं वो एक लंबे एक लिस्ट के एक यानी टर्म के इनिशियल लेटर्स को मिला के एक नई साउंड, एक नया वर्ड बना दिया था, जैसे नासा, नाटो, यूनेस्को, लेजर लाइट एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये लेजर का एक्रोनिम यानी लेजर एक्रोनिम बन गया। लेकिन अगर इनके दरमियान हम इनको अलग अलग लिखेंगे, NA या UN, तो ये एब्रीवेशंस हैं। अफिक्सेस और स्फिक्सेस मिला के नई टर्म्स बनाते हैं, जैसा राइट के आगे ER लगाया तो राइटर बन गया, दैट इज प्रोसेस ऑफ डेरिवेशन। वर्ड फॉर्मेशन इज मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी इज ओरिजिनली अ बायोलॉजिकल टर्म, जो कि ह्यूमन का जो स्ट्रक्चर है उसके हवाले से ये डील करती है, एंड देन इट केम टू लिंग्विस्टिक्स। Minimal unit of meaning or grammatical function is called morpheme. So this is morpheme's definition. यानी morpheme एक minimal unit है meaning का, यानी सबसे कम यूनिट जो कि मीनिंगफुल हो, या सबसे कम यूनिट जो कि ग्रामेटिकल लेवल रखता हो। मसलन ING की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन प्ले के साथ ING लगाया, सो दैट मेक्स इट प्लेइंग, इसकी ग्रामेटिकल वैल्यू बन गई। और प्ले के साथ आपने S लगा दिया, ये भी S की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, बट दैट मेक्स इट एज अ फंक्शनल यूज। सो जो मिनिमल यूनिट है, सबसे छोटा यूज जो कि ग्रामर का या मीनिंग का, दैट इज कॉल्ड मॉर्फीम। अ वर्ड ग्रुप व्हिच हैज वन मीनिंग, जो कि एक प्रॉपर एक डिक्शनरी वर्ड है, दैट इज कॉल्ड लेक्सीम। वो मॉर्फीम जो कि इंडिपेंडेंट हैं और अकेले खड़े हो सकते हैं, उनके साथ बाउंड मॉर्फीम का होना जरूरी नहीं है, दे आर कॉल्ड फ्री मॉर्फीम्स, जैसे प्ले, रन, हिट, खेल, इनको हम अकेले भी यूज करेंगे तो उनके मीनिंग्स क्लियर हैं। बाउंड मॉर्फीम्स वो हैं जिनको जब तक किसी स्टेम या फ्री मॉर्फीम के साथ अटैच ना किया जाए उनके मीनिंग समझ नहीं आते, सो दे आर कॉल्ड बाउंड मॉर्फीम्स। All affixes are bound morphemes. Affixes यानी prefixes और suffixes, faithfully, unfaithfully, और ness, faithfulness. So full या ness, ये सारे के सारे affixes जिसमें prefixes और suffixes आते हैं, they are called bound morphemes.
एक वर्ड जो कि अटैच किया जाता है अफिक्सेस के साथ, उसे हम नॉर्मली वो फ्री मॉर्फीम होता है, इसको हम स्टेम भी कहते हैं। यानी जो एक तना है उसके आगे जैसे पत्ते लगते हैं तो उसके साथ अफिक्सेस लग जाते हैं। लेक्सिकल और फंक्शनल मॉर्फीम्स ये जो हैं ये फ्री मॉर्फीम्स हैं जिनके अकेले मीनिंग समझ आते हैं। फंक्शनल मॉर्फीम्स मींस ट्यू, अब इसका हमें मीनिंग समझ आता है, तो ये जो है फ्री मॉर्फीम्स हैं। नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स ये लेक्सिकल मॉर्फीम्स की कैटेगरी में आते हैं, और आर्टिकल्स, प्रोनाउंस, प्रीपोजिशन फंक्शनल मॉर्फीम्स की कैटेगरी में आते हैं। इनमें चेंज पॉसिबल है, लेक्सिकल मॉर्फीम्स में चेंज आ सकती है, फंक्शनल मॉर्फीम्स में अब चेंज इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो जितनी प्रीपोजिशंस बननी थी, आर्टिकल्स बनने थे, प्रोनाउंस बनने थे, वो बन चुके हैं, अब इसमें फर्दर एडिशन पॉसिबल नहीं है। Which type of morpheme is used to indicate the grammatical function of a word? Inflection morpheme जो कि grammatical function से deal करता है। There are total dash inflections. So 8 inflections हैं मुख्तलिफ, जिसका S, ED, ING, ES इस तरह की। The study of rule of language covers grammar. I shot an elephant in my pajamas. So this is example of deep structure. ये इसके दो मीनिंग बन रहे हैं कि वेदर एलिफेंट वाज इन माय पजामाज और मैंने उसको हिट कर दिया, और आई वाज इन माय पजामाज और मैंने एक एलिफेंट देखा और मैंने उसको शॉट किया। सो बेसिकली इसी तरह एनी बम्प्ड इनटू अ मैन विद एन अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला एनी के पास थी जिसकी टक्कर एक बंदे से हो गई, या एनी की टक्कर एक बंदे से हो गई जिसके पास अम्ब्रेला थी। सो ये बेसिकली क्या है, ये स्ट्रक्चरल एम्बिग्युइटी में भी आती है और ये डीप स्ट्रक्चर में भी है। The information given about a subject in a sentence is predicate. So अब जो डीप स्ट्रक्चर है दैट इज बेसिकली, इसको क्लियर करता चलूं कि ये तो आपने देख लिया कि ये डीप स्ट्रक्चर है हमारे पास, इसकी दो इंटरप्रिटेशंस बन सकती हैं कि या मैं पजामाज में था, या लाइक एलिफेंट वाज देयर इन माय पजामा, इन बोथ वेज, या एनी की टक्कर हुई एक बंदे से जिसके पास अम्ब्रेला थी, या एनी के पास अम्ब्रेला थी। डीप स्ट्रक्चर इज क्लियर। फॉर एग्जांपल डीप स्ट्रक्चर इज के चार्ली ने खिड़की तोड़ दी। अब ये डीप स्ट्रक्चर है, अब इसके सरफेस स्ट्रक्चर बहुत सारे बन सकते हैं। खिड़की चार्ली से टूटी, ये वो खिड़की है जो चार्ली ने तोड़ी, ये वो चार्ली है जिसने खिड़की को तोड़ा, ये वो चार्ली है जिसकी वजह से खिड़की टूट गई, ये वो खिड़की है जो चार्ली की वजह से टूट गई। आप इसके बेशुमार सरफेस स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, बट देयर इज वन डीप स्ट्रक्चर। ओके, गोइंग फर्दर, तो इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज प्रेडिकेट। दो पार्ट होते हैं हर सेंटेंस के, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सो वर्ब से पहले वाला पार्ट दैट इज सब्जेक्ट, वर्ब के बाद वाला पार्ट नॉर्मली दैट इज प्रेडिकेट। Painting, smoking, fishing are example of gerund. I am painting, painting is a verb. Painting is my hobby, that is gerund. He is smoking, smoking is verb. Smoking is injurious to health, smoking is gerund. I like fishing, verb. Sorry, I am fishing, that is verb. I like fishing, so that is gerund. Class, team, committee, they are examples of collective noun. इनको हम हमेशा singular treat करते हैं। Following two languages are considered classical languages. So Greek और Latin जो है वो classical languages हैं। So classical languages का मतलब ये नहीं कि वो exist करना छोड़ दिया उन्होंने, वो किसी न किसी हद तक किसी फॉर्म में, किसी manuscript में exist करती हैं। Which of the following approaches deal with the set of grammar rules and focuses on teaching of grammar rules? Prescriptive approach, यानी prescribe करना, यानी ग्रामर में क्या चीज कैसी है, क्या होना चाहिए, ये आइडियली जो चीज होती है कि ग्रामर को क्या होना चाहिए, कैसे पढ़ानी चाहिए, क्या होना चाहिए, रूल क्या होने चाहिए, इंग्लिश कैसे बोलनी चाहिए, कैसे लिखनी चाहिए, ये प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच है। और जिस तरह उसको यूज किया जाता है, पढ़ाया जाता है, दैट इज डिस्क्रिप्टिव अप्रोच। के लैंग्वेज का जो यूज है, जिस तरह उसे पढ़ाया जा रहा है, दैट इज डिस्क्रिप्टिव। सिंटैक्स कम फ्रॉम अ word that is initially Greek, comes from Greek language. Study of order or arrangement of words is called syntax. Meaning semantics देख चुके हैं हम।
Okay, the table was listening to the music. So this sentence syntactically is correct, but dash wrong. So this is semantically wrong. कि syntactically तो ठीक है, table जो है subject है, आगे predicate हमारे पास आ गया, listening to the music, so listening verb है और music जो है subject है, तो ये हमारे पास जो table है basically ये उस लिहाज से syntactically ठीक है, लेकिन semantically wrong है. Semantically क्यों wrong है? क्योंकि semantically देखें तो table हमारे पास बन जाता है एक तरह से या एजेंट या एक्सपीरियंसर. ठीक है, तो लिसनिंग जो है म्यूजिक हमारे पास पेशेंट या थीम. अब एक्सपीरियंसर के लिए जरूरी है या तो वो फील कर रहा हो किसी चीज को, लाइक आई एम फीलिंग कोल्ड, तो मैं एक्सपीरियंसर हूं, जिसमें मूवमेंट आ गई कि आई एम हिटिंग दिस मेक्स मी एजेंट. तो टेबल का हमें पता है कि टेबल के अंदर ये दोनों क्वालिटीज नहीं है, तो ये सेंटेंस सिमेंटिकली तो ठीक है, लेकिन सिंटैक्टिकली तो ठीक है, सिमेंटिकली इट इज रॉन्ग. व्हेन मीनिंग ऑफ वन फॉर्म पढ़ लिया हमने, हाइपोनिमी होता है. हॉर्स इज हाइपोनिम ऑफ एनिमल. बहुत सारे एनिमल्स हैं, कैट इज एन एनिमल, लायन इज एन एनिमल, एलिफेंट इज एन एनिमल, हॉर्स इज ऑल्सो एन एनिमल. सो हॉर्स और एनिमल हाइपोनिम है. जब दो वर्ड्स जो उनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है, लाइक हैविंग डिफरेंट स्पेलिंग बट सेम प्रोनाउंसिएशन, मीट मीट, स्वीट स्वीट, मतलब SUITE जिसको हम सूट कहते हैं, प्रेसिडेंशियल सूट जो कि एक बड़ा सा लग्जूरियस रूम, उसे भी हम स्वीट कहते हैं. सो स्वीट स्वीट, फ्लावर फ्लावर, सो इनको हम होमोफोन्स कहते हैं. होमो मीन्स सेम, फोन मीन्स साउंड. When one word has two or more different meanings, or two words having two different meanings but same spellings, like bank of the river, bank, financial bank, blood bank भी ये assimilation है, that is not blood bank, blood bank. So ऐसी situation में इनको हम homonyms कहते हैं, यानी same shape, same meaning. Sorry. When one form has different meanings, which are all related by extension, the term is named as polysemy. एक फॉर्म के डिफरेंट मीनिंग्स हैं, लेकिन उनकी एक्सटेंशन एक से रिलेटेड है. जैसा हेड, सर भी हेड होता है, हेड ऑफ द फैमिली, घर का बड़ा, हेड ऑफ द स्टेट, स्टेट का बड़ा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट का बड़ा. सो क्योंकि वो सेम लेक्सिकल सेंस ले रहे हैं, सो दिस इज कॉल्ड पॉलीसेमी. कुछ वर्ड्स हमेशा इकट्ठे आते हैं, मियाँ बीवी, ठीक है, बहन भाई, ब्रेड एंड बटर, फिर सॉल्ट एंड पेपर, ये इनको हम कोलोकेशंस कहते हैं, मार कुटाई. सो दिस इज कोलोकेशन. When a part represents a whole entity, that is known as synecdoche. So synecdoche, I hope I'm pronouncing it right. So ये होता है जब एक पार्ट पूरे होल को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि मैन इज एन एनिमल या मैन इज सोशल एनिमल. सो मैन मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट द होल ह्यूमैनिटी, ऑल ह्यूमन बीइंग्स. स्टडी ऑफ इंटेंडेड मीनिंग्स ऑफ स्पीकर या स्टडी ऑफ मीनिंग्स इन कॉन्टेक्स्ट, इसको हम pragmatics कहते हैं. The set of words used in the same phrase or sentence is called linguistic context. It is known as context. linguistic context क्या है? जिसमें हम एक वो वाले words जो कि सेम फ्रेज में यूज किए जाते हैं, सेम सेंटेंस में, और वो गुफ्तगू से हम उसका कॉन्टेक्स्ट क्लियर करते हैं, गुफ्तगू से उसका कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो रहा होता है. उस चीज को हम कोटेक्स्ट भी कहते हैं, कि द टेक्स्ट इज making a context of the thing which is being said. Words that cannot be interpreted at all without the physical context of the speaker, so they are dixies. कोई मुझे कहता है भाई उससे मिल लो, किससे मिल लो, मुझे नहीं पता. उस दिन आ जाना, किस दिन, I don't know. इस टाइम पे आ जाना, कौन सा टाइम, I don't know. So उसके लिए फिजिकल कॉन्टेक्स्ट का होना जरूरी है. कोई मुझे कहता है जी कि कल तुम आओगे तो वो तुम्हें वहां पे वो मिलेगी और वो तुम्हें पकड़ा देगी. अब मुझे नहीं पता कौन मुझे कहाँ पे मिलेगी, क्या चीज है जो उसने मुझे पकड़ा देनी है. सो दैट मीन्स कि मुझे फिजिकल कॉन्टेक्स्ट का पता होना चाहिए. उससे पहले अगर ये बात हो रही है कि भाई कल जो है वो जो साइंस टीचर है वो तुम्हें लाइब्रेरी के बाहर मिलेगी और जो टेलीस्कोप है वो तुम्हें पकड़ा देगी, उसके बाद अगर ये वाला फिक्रा बोला जाए तो दैट इज क्लियर टू मी. लेकिन उससे पहले ये क्लियर नहीं है, क्योंकि दैट इज नॉट इन माई फिजिकल कॉन्टेक्स्ट.
Any additional information used by listener to connect what is said and what must be meant is called inference. So inference और reference में एक फर्क है. Inference and reference are interrelated. Reference क्या है कि एक बंदा जो बड़ा नॉर्मली टीचर्स के नाम होते हैं किसी भी इदारे में, हिटलर जो बड़ा डाडा टीचर होता है, some people call me so, तो हिटलर नहीं आया आज. So Hitler is a reference given to me. So Hitler मुझे रेफर कर रहा है. So Hitler is used as reference. अब जो एक बच्चा दूसरे से पूछ रहा है भाई हिटलर नहीं आया, तो वो अगला ये नहीं कहेगा यार हिटलर तो मर गया था जंग अजीम के बाद. वो जो उस चीज को इन्फर करेगा, अच्छा तुम्हारा मतलब है जहां से, ठीक है, दिस इज इन्फ्रेंस. सो रेफरेंस और इन्फ्रेंस दे आर रिलेटेड. एनाफोरा क्या है? A subsequent reference to an already introduced entity. Okay, this is my cup and I used this to take tea. So this जो मैंने दोबारा यूज किया इस कप के लिए, this is anaphora, और इसे anaphoric reference भी कहा जाता है. कोहेरेंस क्या है? लिंकिंग ऑफ आइडियाज, जो कि एक टेक्स्ट के अंदर आपस में लिंक होते हैं, जिसको जिस तरह अंडरस्टैंड करते हैं, यानी आइडियाज ऐसे लिंक हो कि हम उसे प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करें, जो उनके आपस का एक रिलेशन है, दैट इज कॉल्ड कोहेजन. स्कीमा क्या है? अ कन्वेंशनल नॉलेज स्ट्रक्चर विच एग्जिस्ट इन मेमोरी. कि आप आईडी कार्ड बनाने गए, आपको पता है भाई क्या स्कीमा है, इंतहाई जलालत है, ठीक है, आप पहले काम ये कहते हो जी जलील हो गए फुल टाइम, दैट इज योर स्कीमा बिकॉज यू हैव बीन थ्रू दैट थिंग. आपको पता है ओके, मॉल्स में जाने से कई लोग बड़े घबराते हैं कि कैसे जाएंगे, कैसे एंटर होंगे, और यहाँ वहां पे गाड़ी का टोकन कैसे होगा. सो वंस यू हैव बीन थ्रू दैट, दैट इज विद इन योर मेमोरी, सो दैट इज योर स्कीमा. कि आपको सिचुएशन का सारा पता है, दैट मेक्स यू इवन मोर कॉन्फिडेंट. इसके साथ स्क्रिप्ट होता है. स्क्रिप्ट इज दैट एडिशनल इंफॉर्मेशन. स्कीमा है कि आईडी कार्ड ऑफिस ऐसा होता है, ऐसे लोग बैठे होते हैं, मुंह चढ़ा के बैठे होते हैं, जलालत होती है, कार की पार्किंग भी नहीं मिलती, फोटोकॉपी भी जो बाहर होती है वो 15 रुपए की होती है. और स्क्रिप्ट क्या है? ऑल द इंफॉर्मेशन दैट यू नो. के इधर से जलील हो के इस सीट पे, उधर से जलील हो के इधर, फिर एक बंदा ढूंढने जो टेस्ट करे, उसके बाद फिर जलालत, ये सारे का सारा जो है दैट इज योर स्क्रिप्ट ऑफ सम प्लेस. ओके, माइंड जो इंसान ह्यूमन ब्रेन है उसके दो पार्ट्स हैं, राइट एंड लेफ्ट. इन राइट नथिंग इज लेफ्ट, इन लेफ्ट नथिंग इज राइट नॉर्मली. लेकिन जो लैंग्वेज है दैट इज इन लोकलाइज्ड इन द लेफ्ट हेमिस्फीयर. अगर लैंग्वेज उसको सामने रखें तो जो राइट एंड लेफ्ट पार्ट है उसको हम लेफ्ट हेमिस्फीयर में लैंग्वेज लोकलाइज होती है. प्रूव हो गया मुख्तलिफ तरीकों से, लोगों ने प्रूव कर लिया. तो लेफ्ट में एक प्लेस होती है दैट इज नोन एज ब्रोकास एरिया. सो ब्रोकास एरिया में अगर डैमेज है तो स्पीच जो है हमारी प्रोडक्शन वो मुतासिर होती है. थोड़ा डैमेज थोड़ी सी मुतासिर होगी, ज्यादा डैमेज ज्यादा मुतासिर होगी. फिर वहीं पे वर्निकास एरिया भी है उसके करीब. यहां पे जब चोट लगेगी तो स्पीच कॉम्प्रीहेंशन डिस्टर्ब होती है कि हमें बोलने में इश्यूज फेस करने पड़ते हैं. Which of the following part of the brain controls the articulatory muscles, jaw, tongue, and larynx? So that is motor cortex. Motor cortex ये भी left hemisphere में है. ये basically language से related जो muscles हैं उसको control करता है. नहीं आदिल, this is on the left side. ये सारे areas left side पे. Language होती है localized left side पे. So motor cortex is the muscle. और ये जो आर्क्यूएट फेस्कुलस, ये ब्रोका एरिया और वेनिकस एरिया को आपस में कनेक्ट करने वाले फाइबर्स हैं. ये उनको आपस में तारे हैं जो उस एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं. लैंग्वेज एबिलिटी कहां पे है? लेफ्ट हेमिस्फीयर में, बाएं तरफ. ये जो इनएबिलिटी है इंसान की कि लैंग्वेज को वो या तो बोल नहीं पा रहा या समझ नहीं पा रहा, दिस इज कॉल्ड एफेजिया. APHASIA. अच्छा, बेबी जब 3 महीने का होगा सो ही कैन प्रोड्यूस वैलिड साउंड, खा खा गा गा, ये जो साउंड है, या ई ऊ. सो दीज साउंड्स, सो दीज आर कॉल्ड क्यूइंग स्टेज. ये 3 महीने का बच्चा क्यूइंग स्टेज पे आ जाता है. 6 मंथ का बच्चा बैबलिंग स्टेज पे आ जाता है, विच इज अ बिट डिफिकल्ट. बैबलिंग में थोड़ा सा उसे ज्यादा साउंड्स को यूज करना पड़ता है, नेजल साउंड्स यूज करता है, फ्रिकेटिव साउंड्स यूज करता है.
एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग, इसमें क्या फर्क है? एक्विजिशन जो है वो नेचुरल है, लर्निंग कॉन्शियस एफर्ट है। हम सेकंड लैंग्वेज को लर्न करते हैं लेकिन फर्स्ट लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं, जो कि अनकॉन्शियसली होता है। एक छोटे बच्चे को नहीं पता मुझे जुबान भी सिखा रहे हैं, लेकिन अब आपको जो ग्रामर, पार्ट्स ऑफ स्पीच सिखाए जा रहे हैं, ये आप लैंग्वेज को लर्न कर रहे हैं। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर और लैंग्वेज, दैट इज जीटीएम, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, कि जिसमें ट्रांसलेट किया जाता है लोकल लैंग्वेज के अंदर दूसरी जुबान को, फॉरेन लैंग्वेज को। ऑडियो लिंगुअल मेथड जो है ये एक ड्रिल मेथड है, जिसके अंदर हम बार बार रेपिटेशन करते हैं रिकॉर्डेड साउंड्स को। इंटर लैंग्वेज जो है, जब L1 और L2 को मिक्स करके कोर लैंग्वेज बनाई जाती है, इसको हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। Speaking one language, if we shift to another language, code switching, code mixing is already done in that. English is derived from which of the following major languages? So German, West Germanic language है. A particular form of language which is particular to specific region or social group is called dialect. So dialect है जो particular specific region या एक social group से है, उसको हम dialect कहते हैं। डायलेक्ट जो है वो वोकैबुलरी है, और एक्सेंट जो है वो प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड है, ये इसमें डिफरेंस है। वैरायटी जो कि डेवलप होती है प्रैक्टिकल पर्पस के लिए, उन लोगों के लिए जो कि आपस की लैंग्वेजेस नहीं जानते, दैट इज पिजन, दैट टेक्स शेप ऑफ अ क्रियोल, एंड क्रियोल चेंजेस इनटू अ लैंग्वेज, यस, अ प्रॉपर लैंग्वेज। सो लैंग्वेज जो डेवलप होती है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है, दैट इज क्रियोल। A person's dialect of each individual speaker, the personal dialect जो है हर एक इंडिविजुअल स्पीकर का, वो उसका इडियोलेक्ट है। जितनी दुनिया है यहाँ पे, जितने जैसे कहते हैं ना कि 8 बिलियन पीपल एंड 16 बिलियन फेसेस, कि हर बंदे के दो चेहरे हैं, इसी तरह जैसा अगर 9 बिलियन पीपल हैं तो 9 बिलियन ही हमारे पास इडियोलेक्ट्स हैं, क्योंकि हर बंदे का बोलना दूसरे बंदे से डिफरेंट है। आप बेशक किसी को कॉपी भी करें, लेकिन कहीं ना कहीं पे कोई डिफरेंस है। अक्सर लोग एक दूसरे की मिमिक्री करते हैं, इमिटेशन करते हैं, वो इसलिए कि हर बंदे का डायलेक्ट, वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन सेम हो सकती है, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि वो इंडिविजुअली यूज करता है, जो कि पर्टिकुलरली उससे रिलेटेड है। और अगर ये चीज ज्यादा हो जाए, कि अगर वो ट्रेट्स जो कि एक स्पीकर में है वो बहुत सारे स्पीकर्स के अंदर कॉमन हो जाए, तो वो डायलेक्ट बन जाता है। रजिस्टर जो कि अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक सिचुएशन होता है, उसको हम रजिस्टर कहते हैं। स्पेसिफिक प्रोफेशन जो है उसे हम जार्गन कहते हैं, जो टेक्निकल वोकैबुलरी है किसी एक स्पेसिफिक फील्ड से, ग्रुप से। दो लैंग्वेजेस अगर हैं, एक हाई एक लो, एक सोसाइटी में, दैट इज डायग्लोसिया। स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन रिलेशन टू ब्रेन इज कॉल्ड न्यूरोलिंग्विस्टिक्स। लैंग्वेज और ब्रेन का जो रिलेशन है वो न्यूरोलिंग्विस्टिक्स में आता है, कि ब्रेन का डैमेज किस तरह चेंज करता है लैंग्वेज को। सोसाइटी को स्टडी करते हैं अगर लैंग्वेज के हवाले से, दैट इज सोशियोलिंग्विस्टिक्स। चॉम्स्की ने कॉम्पिटेंस का दिया कि जो हमारी एबिलिटी है और परफॉर्मेंस, उसका यूज है, तो ये चॉम्स्की का कॉन्सेप्ट था। सॉसियर का कॉन्सेप्ट जो था लॉन्ग एंड पैरोल का था। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ग्रामेटिकल सेंटेंसेस, ये हमारे लॉन्ग में है, और पैरोल उसकी एग्जीबिशन है। सेट ऑफ ऑल अटरेंसेस जो कि हम निकालते हैं, बोलते हैं, दैट इज पैरोल। स्किनर और वॉटसन ने बिहेवियरिज्म की थ्योरी डेवलप की, या उससे रिलेटेड हैं ये दोनों नाम। बेसिकली स्किनर। बिग और स्मॉल, दीज आर कॉल्ड ग्रेडेबल एंटोनिम्स। एंटोनिम्स में टाइप्स होती हैं, एक होते हैं ग्रेडेबल, एक होते हैं नॉन ग्रेडेबल। ग्रेडेबल बिग और स्मॉल। बिग ज्यादा बिग, कम बिग। स्मॉल ज्यादा स्मॉल, कम स्मॉल। कुछ होते हैं नॉन ग्रेडेबल, कि जिनकी आप ग्रेडिंग नहीं कर सकते। बंदा मर गया, my grandfather is dead, your grandfather is deader than my grandfather, या I am alive, more alive than you, so ये हम इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते, so they are non gradable, alive and dead। सिमिलरली आप जो है इसके अंदर एक और चीज होती है रिवर्सिव्स। सो रिवर्सिव में जो ऑपोजिट है एक चीज का, वो डजंट मीन वो उसका एंटोनिम भी कहलाए। मसलन जिप का ऑपोजिट अगर हम ये नहीं कहेंगे नॉट जिप, क्योंकि वो डिफरेंट सेंस देगा। जिप किसी चीज को जिप करना, अनजिप किसी चीज को खोलना।
पुश का ऑपोजिट नॉट पुश नहीं है, पुश का ऑपोजिट पुल है। एग्जिट का ऑपोजिट नॉट एग्जिट नहीं है, उसका ऑपोजिट एंटर है। सो दीज आर कॉल्ड रिवर्सिव्स। सैपर-वुल्फ हाइपोथेसिस कहती है कि लैंग्वेज को हम यूज करते हैं थॉट्स के वाले से परसीव करने के लिए। स्ट्रक्चरलिज्म, फर्डिनेंड डी सोसियर, जिसने अ कोर्स ऑफ जनरल लिंग्विस्टिक्स बुक लिखी, जो कि इसने खुद नहीं लिखी, इसके लेक्चर्स थे जो उसके स्टूडेंट्स ने शेयर किए बाद में इन अ फॉर्म ऑफ बुक। हिस्ट्री, हिस्टोरिकल स्टडी, डायक्रॉनिक स्टडी होती है। ओमिशन ऑफ अ वर्ड फ्रॉम अ सेंटेंस इज कॉल्ड एलिप्सिस, यानी साउंड अगर निकालें तो दैट इज इलीजन, लेकिन अगर एक वर्ड निकाल दिया जाए या कुछ वर्ड्स निकाल दिया जाए एक सेंटेंस से, उन्हें हम एलिप्सिस कहते हैं। वो इसलिए कि इट मींस कि यस तुम्हें समझ आ गई, यानी आगे जो डॉट 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 लगा देते हैं दैट मींस टू सेव द स्पेस और टाइम। इट मींस कि अगले बंदे को इतने से ही समझ आ गई होगी, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं कि अ फ्रेंड इन नीड इज डैश डैश डैश, सो दैट मींस कि मैंने उसकी एलिप्सिस को यूज किया क्योंकि यू ऑलरेडी नो कि व्हाट आई मीन टू से। जब लिटरेचर और लैंग्वेज को हम आपस में मिलाते हैं, उनका कंपैरिजन करते हैं किसी पर्टिकुलर लेवल पे, हैरी पॉटर लिटरेचर की बुक है, हैरी पॉटर के अंदर जो लैंग्वेज का एनालिसिस करेंगे सो वो जो है स्टाइलिस्टिक्स बन जाएगा। सो लैंग्वेज और लिटरेचर को जब हम कंबाइन करते हैं सो दैट मेक्स स्टाइलिस्टिक्स। लैड यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ये कॉन्सेप्ट दिया था चॉम्स्की ने। ये क्या होती है, हमारे माइंड में लेफ्ट साइड पे एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है जो ट्रिगर होती है। जैसे एक बच्चा पैदा होता है और उसे लैंग्वेज से एक इंस्पायर किया जाता है। हाल ही में बताया गया कि वियतनाम वॉर के बाद एक बंदा जो कि अपने फादर के साथ जंगल में गया और वो 40 साल बाद अब दोबारा निकला, तो मुझे नहीं पता कि उसके फादर ने उसे जुबान सिखाई है, वो किस स्टेज पे उसका फादर फोत हो गया। नॉर्मली 8-10 साल की एज के बाद बच्चे को, जब आप इस एज में उसके साथ नहीं बोलते तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस ट्रिगर नहीं होती और बच्चे को फिर लैंग्वेज समझ नहीं आती। वो वर्ब्स, नाउन्स, एडजेक्टिव तो बोल लेगा लेकिन सेंटेंसेस नहीं बोल पाता। सो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस ट्रिगर होती है जैसे ही आप लैंग्वेज के साथ किसी को एक इंट्रोड्यूस करते हैं बच्चे के माइंड को। These were almost 300 MCQs, so I hope you got enough understanding of it. So let me see if you're having any questions. Meanwhile, let me close the recording.